اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اے اللہ ابھی آپ نے جو یہ دعا سنی، یہ میرے ہر سیشن کے شروع میں یہ دعا ہوتی ہے. اگر یہاں آ جاتی تو بہت اچھا ہوتا. اس کے معنی کچھ ایسے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ آج مجھے علم دیں گے اس کو میرے لیے منافع بخش بنائیں، اور مجھے وہ علم مزید سکھائیں جو میرے لیے منافع بخش ہو. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اس طرح اس دعا کر کے بیٹھنے سے ہمیں کسی بھی محفل میں، کبھی کبھار ایسی بھی محفلیں ہوتی ہیں کہ جہاں کام کی باتیں تو ہوتی ہیں مگر کچھ غلط باتیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں اثر نہیں کرتی اور ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے ہر چیز کا. تو یہ دعا یاد کر لیں، اگر لگ جائے گا تو بڑی اچھی بات ہو. تو یہ آپ کو گوگل پہ بھی مل جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب وہ لکھ جائے گا دا ورڈ کانشیس پیرنٹنگ کا ٹاپک ہے میرا آج کا. لیکن کانشیس پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے، پیرنٹنگ تو سب کو پتا ہے کہ کیا ہے. پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ پیرنٹنگ پتا ہے، بٹ کسی کو نہیں پتا. پیرنٹنگ کا مطلب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے پالتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پیرنٹنگ تو سب کرتے ہیں. جس کو بھی اللہ نے بچہ دے دیا، چاہے اس نے پیدا کیا ہو، چاہے اڈاپٹ کیا ہو، اس کو اس قابل سمجھا کے اس کی گود میں اس کے گھر میں ایک بچہ آ گیا، پیرنٹنگ سب کرتے ہیں. پیرنٹنگ ایک شیر اپنے کپ کا بھی کرتا ہے، ایک بلی اپنے بچے کے لیے بھی پیرنٹنگ کرتی ہے. ایک دودھ پلانا، خیال کرنا، چاٹنا اپنے بچے کو، دوسرے دشمنوں سے اس کو بچانا. یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جانور بھی کرتا ہے اور بڑے اچھے سے کرتا ہے. کبھی کبھار جانوروں سے ہم بہت زیادہ سیکھتے ہیں. بندر کو دیکھا کیسے اپنے بچے کو بچاتا ہے، ہر وقت کندھے پہ بچہ بیبی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کو پیار بھی کرتا ہے، اس کی چوہیں بھی نکالتا ہے، یعنی اس کی ہائیجین کا بھی خیال کرتا ہے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم نے جانور سے سیکھی جانور سے بھی سیکھی ہیں کہ بچے کی ہائیجین، صفائی، بچے کو دشمنوں سے بچانا، کوئی کھا نہ جائے اس کو، کوئی اس سے اٹیک نہ کرے. اور بتائیں ایک جانور پیرنٹ اور کیا کیا کرتا ہے اپنے بچے کے لیے؟ ہاں سیف رکھتا ہے جانوروں سے اور بارش دھوپ سے رکھتا ہے. بلی کے بچے کو دیکھا کسی چیز کے نیچے چلا جاتے ہیں جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، اپنے بچے کو منہ میں اٹھا کر نیچے کہیں گے اور کیا کھانا کھلاتا ہے، اپنے منہ سے بھی کھلاتا ہے، دودھ بھی پلاتا ہے. اور بتائیں تربیت بھی کرتا ہے. اب لیکن ہمیں ہاں، اور شکار کرنا سکھاتا ہے، شکار کرنا بھی سکھاتا ہے. انہوں نے اتنی اچھی بات کی کہ تربیت بھی کرتا ہے. تو یہ تو اینیملز ہیں جو کہ اپنے بچوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور بھی کوئی چیز بتائیں گے؟ ہاں اپنے بچے کو بچاتا ہے. او مطلب قربانی بھی دے سکتا ہے. تو وہ پیرنٹ، جانور کا پیرنٹ جو ہے وہ قربانی بھی دے سکتا ہے، صفائی کا بھی خیال کرتا ہے، تربیت بھی کرتا ہے. اور کوئی چیز؟ جیسے کہ کینگرو، اس کے یہاں پر اس کے لیے جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ اس کو اپنے ساتھ ساتھ بچے کو لے جاتا ہے. اچھا، تو وہ حفاظت کرتا ہے، اپنے ساتھ ساتھ رکھتا ہے. رول ماڈلنگ کرتا ہے. ایک چڑیا جو اڑ سکتی ہے وہ رول ماڈلنگ کرتی ہے کہ دیکھو میں اڑ رہی ہوں، میرے پیچھے اڑو، ایسے رول ماڈلنگ کرتا ہے. رول ماڈلنگ بھی کرتا ہے. اچھا، تو یہ تو ساری چیزیں جو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں میں تو بڑی رول ماڈل ہوں اور میں تو اپنے بچوں کو وقت پہ کھانا کھلاتی ہوں، سب کچھ تو کرتی ہوں، کھانا بھی کھلاتی ہوں، نہلاتی بھی ہوں، صفائی کا بھی خیال، تو اور کیا کروں؟ تو یہ تو سب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ تو سارے جانور بھی کر رہے ہیں. تو ہم کیسے الگ ہوئے تھے؟ اب کچھ دو تین چیزیں ایسی بتاتے ہیں جو جانور نہیں کرتے اور ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم علم دیتے ہیں بچوں کو. ویری گڈ. اور ہم انسان کو شعور ہے اور جانور کو شعور نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، انسان کو شعور ہے، جانور کو شعور ہے. بڑی بھاری بات کہتی ہے آپ نے. لیکن اور مجھے ابھی ایکشنز بتائیں، ایسے کون سے ایکشنز ہیں جو انسان کرتا ہے اور جانور کا پیرنٹ نہیں کرتا؟ ایک بات پہ ہم متفق ہو گئے کہ جانور پیرنٹنگ کرتا ہے، یس یا نو؟ پیرنٹنگ کرتا ہے. ہم پیرنٹنگ کرتے ہیں. تو دونوں پیرنٹنگ میں فرق کیا ہے؟ احساس بھی کرتا ہے. اچھا،
हम एहसास करते हैं। ठीक है, ये है कि पेरेंट जो है वो झूठ बोलता है लेकिन जानवर झूठ नहीं बोलता। हम अपने बच्चे को सिखा दें कि देखो हम इस तरह कह रहे हैं, हमसे वो झूठ सीखे। ये कह रही हैं कि जानवर को पता नहीं है कि धोखा कैसे देते हैं, तो बच्चे हमारे हमसे धोखा देना सीखते हैं। जानवर शायद नहीं सिखाता है धोखा देना, कभी कभी कोई जानवर सिखाते हैं कि ऐसे पड़ जाओ जैसे तुम मर गए हो, ताकि जानवर तुम्हें दूसरा खा न जाए, तो एक्टिंग सिखाते हैं कभी कभार। हाँ जी, और जी शुभता इखलाक सिखाते हैं। जानवर का पेरेंट अपने बच्चे को इखलाक सिखाता है कि अगर तुम शिकार करने जाओ तो जरा प्यार से करना, अच्छा मियाँ करो तो जरा प्यार से करना, किसी का दिल न तोड़ना, सिखाता है जानवर का पेरेंट सिखाता है। हाँ बोल रही हैं आप, सिखाता है। मतलब नहीं, हम बोल सकते हैं। हाँ हम बोल सकते हैं, जानवर नहीं बोलता है, मतलब दूसरों की बातें वो समझ सकते हैं, तो वो हम तो नहीं समझ सकते। हाँ वो हमारी बातें नहीं समझ सकते, बात तो एक ही है। मतलब हम बोल सकते हैं, हम एक दूसरे से शेयर कर सकते आप कहना चाहते हैं कि हमें जुबानें सीख सकते हैं और वो जुबानें नहीं सीख सकते। हाँ मगर तोता सीखता है। कुछ जानवर होता है वो कुछ नहीं। तो बेसिकली अल्लाह ने हमें अक्ल ज़्यादा दी है, अक्ल शऊर ज़्यादा दिया है। और जी हाँ हलाल और हराम का फर्क सीखने के लिए भी एक चीज़ दरकार है हमें, क्योंकि वो स्टेप 2 है। वो चीज़ अगर हमारे पास होगी तो हम अच्छा बुरा गलत सही, हमारे दीन से आई हुई बातें, हमारे कल्चर से आई हुई बातों को हम सीख सकेंगे। अल्लाह पाक ने इंसान को जो है ना शऊर दिया है और जानवर को ख्वाहिश दी है, तो ये फर्क है इंसान और जानवर। तो अगर शऊर एक स्पीशी को दिया है, ये स्पीशीज है ना अल्लाह की, मुख्तलिफ मखलूक है, तो उसकी पेरेंटिंग स्टाइल में और जिसके पास शऊर नहीं है उसकी पेरेंटिंग स्टाइल में फ़र्क होना चाहिए, होना चाहिए। जानवरों के यहाँ बच्चे कितनी जल्दी जल्दी पैदा होते हैं। हाँ अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक बनाया है। हाँ, तो हमें क्या सलाहियत दी है, एक सलाहियत है हमारे पास शऊर की। एग्जैक्टली, हमें सोचने की सलाहियत दी है, और सोच भी वो वाली जो कि पास्ट को भी सोच सकती है, प्रेजेंट को भी सोच सकती है, फ्यूचर को भी सोच सकती है। सोच की सलाहियत जानवर को भी दी है, लेकिन वो प्रेजेंट में रहता है। उसके कोई घाव, पुराने बचपन के घाव को वो याद नहीं करता रहता कि उसने मुझे धोखा दिया था, उसने मुझसे मोहब्बत के वादे किए थे मगर उसने मुझे भाया नहीं, वो ये बातें याद नहीं रख सकता, राइट। वो फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर सकता कि अभी मेरे 2 बच्चे हो गए हैं तो फिर आगे में वसाइल नहीं है मेरे पास, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं इनको खाना कैसे दूंगा, वो ये नहीं सोचता, वो प्रेजेंट में रहता है। और तो जो शऊर होता है जिसके पास, वो सोच के पैदा करता है, जिसके पास शऊर नहीं होता बगैर सोचे समझे पैदा करता है। ये फर्क तो समझ आ गया, और आपको ये भी समझ आ गया कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। गुड, सही है। तो अब हम बात कर रहे हैं कॉन्शियस पेरेंटिंग की, ठीक है। कॉन्शियस का मतलब ही ये है, खड़ी हो जाऊँ बेहतर है, कॉन्शियस का उर्दू लफ्ज है होशमंद, होशमंद, ठीक है। लेकिन इंग्लिश के सारे अल्फाजों को जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं या उर्दू के सारे अल्फाजों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो उनके साथ इंसाफ नहीं होता, उनके अपने अपने मायने अपनी अपनी लैंग्वेज में बड़े अलग होते हैं, ठीक है। तो होशमंद अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँ होशमंद क्या, होशमंद मतलब कि होशमंद ऐसे एंटीना खड़े हुए हों हर वक्त, ये होशमंद। कॉन्शियसनेस का उल्टा क्या है, अनकॉन्शियस। ये लफ्ज कभी सुना है, वो तो अनकॉन्शियस हो गया, ये हमने बहुत लफ्ज सुना होगा। तो क्या मतलब होता है, बेहोश हो गया, कोई धड़ाम से गिर जाए, इसका ब्लड प्रेशर गिर जाए तो हम बोलते हैं वो तो अनकॉन्शियस हो गया। जिस वक्त वो अनकॉन्शियस होता है उस वक्त क्या वो कोई काम कर सकता है? अगर अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, क्या वो बेहोशी में याद कर सकता है कि मेरे बच्चे ने दोपहर का खाना नहीं खाया है, तो जल्दी जल्दी उठो, खड़े हो, खाना दे दो, फिर बेहोश हो जाना, ऐसे कर सकता है? तो इसलिए अनकॉन्शियस तकरीबन एक मौत का सा एक हालत होती है। इवन हमारे सो जाने को भी कहा जाता है कि जैसे आप जब सोते हो रात को तो जैसे एक मौत की सी हालत होती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता, आप कोई एक्शन नहीं कर सकते until and unless कि आप जाग कर कॉन्शियस हो जाएं।
कॉन्शियस हुए तो अब आपको सब चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, देख भी रहे हैं, फिर आप सोच भी रहे हैं कि अच्छा मैं क्या करूँ, कि मेरे सामने दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, क्या मुझे इसके बीच में पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, मैं अगर जाऊँगा तो फिर ये हो जाएगा। ये हम सोचते हैं थोड़ा सा आगे, मैं नहीं जाऊँगा तो फिर मैं अपने ज़मीर को क्या जवाब दूँगा कि मैंने ये होते हुए देखा, मैंने रोका नहीं। ये सारी बातें इंसान सोच सकता है, जानवर इतनी गहराई से सोचता नहीं है। तो एक बात तो हमें समझ आ गई कि पेरेंटिंग, सादा पेरेंटिंग और कॉन्शियस पेरेंटिंग में फ़र्क है। कितना फ़र्क है? इंसान और जानवर में, ठीक है। पेरेंटिंग वो भी करते हैं लेकिन हम भी करते हैं, लेकिन अगर हम वो वाली पेरेंटिंग करने लगे जैसे जानवर करते हैं तो फिर इसका मतलब हम नाशुक्रापन कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें शऊर दिया है उसका दिया है, लेकिन हम कह रहे हैं हमें उसको इस्तेमाल नहीं करना। आपको पता है नाशुक्रेपन की एक बहुत बड़ी जो एक सिम्टम है वो ये है कि जो चीज़ ब्लेसिंग आपको दी है उसको आप यूज़ ना करें। यानी अल्लाह ने मुझे हाथ दिए हैं मगर मैं ऐसे करके बैठी रहूँ सारा दिन, मैं तो उसको इस्तेमाल ही नहीं करूँगी, ये नाशुक्रापन में जाता है। गाय आपके पास पाँव है और आप बोले मैं तो नहीं चलूँगी, मुझे हर कोई पानी पिलाए, हर कोई मेरे पास लेकर आए, ये नाशुक्रेपन में आता है। तो अल्लाह ने अगर आपको अकल दी है, शऊर दिया है, हिम्मत दी है, हिम्मत सबके पास नहीं होती बात करने की, रोकने की, तो उसको अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो ये भी नाशुक्रेपन में जाता है। अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है और आप बात नहीं करते, लोगों को नहीं समझाते, ये भी नाशुक्रापन है। तो इसका उल्लेख कर दें कि अगर आप अपने दिए हुए आज़ा ऊपर से जो नजर आ रहे हैं, हाथ पाँव और अकल और एहसास और फीलिंग्स को अगर शेयर करते हैं तो इसका उल्टा क्या हुआ? शुक्राना हुआ। तो हम हर वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुँह से तो हर वक्त बोल रहे होते हैं, लेकिन जब हम उनसे ये कहते हैं कि आप आइए हमारे साथ जरा हम बच्चों के ऊपर जो ये अब्यूज़ हो रहा है इस पर बात करने जाए, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चे, मैं नहीं निकल सकती, नहीं मैं इन खड्डों में नहीं बैठती। तो वो जो हम कहते हैं ना अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे रखा है, वो काफ़ी नहीं है। वो जुबान से हम बोल रहे हैं सिर्फ, क्योंकि हम अपने दिए हुए ब्लेसिंग्स को लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो या तो हम ये मान लें कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, ऐसा है आपके पास कुछ नहीं है, सबके पास कोई ऐसा कह सकता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है? ऐसा फील करता है? कभी कभी हम फील करते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। उस पर भी बात की जा सकती है कि आपके पास क्या कुछ है। कम से कम एक बात तो मुझे पता है, जितने लोग आज इधर आए हैं वो सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसीलिए तो बैठे हैं। चलकर आए हैं मतलब टांगे भी हैं, और सर हिला रहे हैं का मतलब कि यहाँ हड्डियाँ भी सही चल रही हैं। तो ये तो सब है, तो इस सब को लेके ही बड़े बड़े कारनामे हो सकते हैं, यही बहुत है, ठीक है। तो कॉन्शियस होना, कॉन्शियस पेरेंटिंग, इस पे आने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉन्शियसनेस होती क्या है। कॉन्शियस पेरेंट सिर्फ नहीं होता, कॉन्शियस फादर भी होता है, मदर भी होती है, कॉन्शियस टीचर भी होता है, कॉन्शियस मेंटर भी होता है, कॉन्शियस स्टूडेंट भी होता है। ये कॉन्शियस होना एक खास किस्म की मेराज है, अकल की मेराज है। जब अकल और जहन और एहसास सब मिलकर किसी मेराज पे पहुंच जाते हैं ना, यानी स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, तो हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत हाई हो जाता है। और उसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना होता है, अपने अंदर जाके अपने ऊपर काम करना होता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि कॉन्शियसनेस होती क्या है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस। अब इतना कुछ मैंने अब तक बताया, कोई समझा सकता है कि कॉन्शियसनेस क्या होती है? उर्दू में सिंपल अल्फाज है, ये लफ्ज लिखा हुआ है सामने, इसलिए देख लें आप, स्पेलिंग्स भी देख लें इसकी। कॉन्शियसनेस क्या होती है, सादे अल्फाज में समझाएगा। होशमंदी, होश में कोई अकल का इस्तेमाल करना, सोच का इस्तेमाल करना, सोच का इस्तेमाल करना, ठीक है। और हर वक्त अपने दिमाग को हाजिर करना, हर चीज़ के बारे में जैसे सोचना, दिमाग को हाजिर करके सोचना। अच्छा, ये कह रही है हर वक्त अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, हाजिर करके एक सिनेरियो के बारे में सोचना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, ऐसा है? हम सोचते हैं कि क्या करूँ, ये सामने छुप कर लिया, मारूँ कि नहीं मारूँ, कि कहीं मेरे ऊपर तो नहीं आएगी, सोचते हैं। कभी हम बगैर सोचे करते हैं तो हम फौरन जगत खाते हैं, बगैर सोचे समझे मार लेते हैं। उस हम कहते भी हैं कि बगैर सोचे समझे तुमने ये बोल दिया मुझे। थोड़ी देर रुकते हैं, हम रुक जाते हैं, रुकते हैं। और अगर रुकने में जिस वक्त आप रुकते हो
उस वक्त अगर आप बड़ी लंबी गहरी सांस लें ना तो आपके दिमाग तक क्या पहुंचता है? ऑक्सीजन पहुंचता है। ऑक्सीजन क्या होता है? सांस लेना तो होता है, लेकिन हवा में जो हवा है हमारे इर्द गिर्द, इसमें बहुत सारे किस्म के गैसेस हैं ना। तो हम जो सांस लेते हैं, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है, बाकी सारी चीजें हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हम कुदरती तौर पे बगैर हमारी कोई मेहनत किए हुए, मतलब हम कोई बटन नहीं दबाते, टक टक ऑक्सीजन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाए, नाइट्रोजन नहीं जाए, हमारे लंग्स को, हमारी बॉडी को, हमारे दिल को, हर चीज को ऐसे प्रोग्राम किया हुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि जिस चीज की हमें जरूरत है वो चीज अंदर जाती है, जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है वो, आपको पता है कौन कर रहा है ये सब कुछ? अंदर आपके अंदर कोई है? तो कहना आसान है, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सब कुछ पता है कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई अंदर है जिसको आपने बोला हुआ है चलो चलो शाबाश? अगर आपकी बॉडी कॉन्शियस है ना, कॉन्शियस है तो वो जागी हुई है, तो वो सब चीजें चल रही हैं। जब सब चीजें चलती नहीं है, हम कोमा में चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, फिर वेंटिलेटर्स लग जाते हैं, फिर हम मशीनों से दिल को चला रहे होते हैं। व्हाट इफ अगर आपके अंदर जो आज़ा हैं, लंग्स है, दिल है, सब अलग अलग कोई शख्स होते हैं, दिल एक अलग सोच रखता, एक अलग उसकी अपना दिमाग होता, लंग्स का अलग अपना दिमाग होता, मेरे पेट में जो इंटेस्टाइन, जो हमारे पेट स्टमक होता है उसका अपना दिमाग होता, किडनीज होती है हमारे पीछे, उसका अपना दिमाग होता। और एक दिन सुबह उठ के किडनी बोलता आज तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा मैं काम करूँ, मैं बहुत थका हुआ, मुझे कोई कुछ ना बोले आज, और वो कहे मुझे आज सोने दो मैं थका हुआ, क्या होगा उस दिन? क्या चीज रुकेगी हमारी? कौन सा? किडनी का सिस्टम रुकता है तो क्या रुकता है, किसी को पता है? हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो हम खाते हैं वो यूरिन बन के जो निकल जाता है, और यूरिन हमारा क्या निकालता है? हमारे पॉइजन्स को निकालता है। अगर वो ना करें तो हमारे जिस्म में जहर हो जाए, तो यूरिन पॉइजन होता है, जहर होता है, उसमें वो जो स्मेल होती है और येलो कलर होता है वो पॉइजन है। जो कि हम खाना खाते हैं उसको पेट है ना अलग अलग करता है। हम तो सब मिक्स खा लेते हैं ना, हम तो आटा गूंथते हैं, हम तो फिर सबको मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, फिर उसको खा लेते हैं, फिर पेट दोबारा बेचारा सब चीज़ों को अलग अलग करता है। अच्छा भाई ये कार्बोहाइड्रेट अलग, ये अलग, आपने तो नहीं बोला उसको। एक दिन पेट आपको कहते मैं नहीं कर रहा कुछ भी, मेरा कोई मूड नहीं आज काम करने का, मुझे सैलरी नहीं मिली है, मैं तो रिजाइन कर रहा। क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकोगे। और इसी तरह अगर किसी दिन दिल ने कह दिया सुबह आज मैं नहीं धड़क रहा, क्या होगा? ये एंड हो जाएगा। तो ये जो इसको कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, मतलब कि हम कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे, खुद ब खुद हमारे लिए हो रही हैं ये चीज़ें। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक शुक्राने का मुकाम। अब ये सब चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि अगर आप कॉन्शियस हैं, आप अपनी अक्ल समझ को इस्तेमाल करते हैं, गहराई से सोचते हैं हर चीज़ के बारे में, तो ये सारे जो आपके आज़ा हैं जो खुद ब खुद चल रहे हैं, दिमाग भी आपका खुद ब खुद चल रहा है, आपकी नजरें हैं, आप लोगों को देख रहे हैं, यहाँ तक कि पलट का आप झपकते हैं ना, वो भी अपनी हिम्मत खुद नहीं खुद ब खुद झपकती हैं पलटें। वो सारी चीज़ों को अब कॉन्शियस इंसान क्या करता है? वो कहता है ये सब कुछ तो खुद ब खुद हो रहा है, मैं इसके ऊपर और क्या कर सकता हूँ? मेरी मेहनत कहाँ है? ये तो इसमें तो मेरी कोई मेहनत नहीं है। मेरी अपनी मेहनत इन चीज़ों के ऊपर कैसे होगी? दिल मेरा खुद ब खुद धड़क रहा है, आपका भी धड़क रहा है, मेरा भी धड़क रहा है इक्वल, लेकिन आपका दिल बड़ा है और मेरा दिल छोटा है। ये मेरी और आपकी मेहनत से हो, समझ आए? मुंह में हमारे जो थूक आती है उसके लिए मैं मेहनत करती हूँ ना आप, तो खुद आती है, लेकिन इस जुबान से कौन से लफ्ज मुझे बोलने हैं और कौन से आपको, ये मेरी मेहनत है उसके ऊपर। हम सब एक जैसा नहीं बोलते है ना। अल्लाह ने ये हाथ हमें दिए हैं, इसमें फीलिंग्स दी हैं, हम फील कर सकते हैं लोगों को। मेरी मर्जी कि मैं इससे ऐसे फील करूं, मैंने महसूस किया इस बच्ची को, या मेरी मर्जी कि मैं ऐसे फील करूं। इसमें हमारी कॉन्शियसनेस काम करती है। मैंने कॉन्शियसली फैसला किया कि मैंने अपने हाथों को ऐसे इस्तेमाल करना है, लेकिन मेरी स्किन के ऊपर जो फीलिंग है वो मेरी मेहनत से नहीं है, वो आपकी भी सेम है, मेरी भी सेम है। तो हमारी अपनी कॉन्शियस एफर्ट से हम और आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अगर ये कॉन्शियसनेस में हटा दो ना तो हम सब एक जैसे। मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको, अगर हमें हमारे दिमाग से, हमारे जिस्म से, हमारे
हर सेंसेस से ये ताकत निकल जाए कि मैं सोच समझ के कुछ चीज़ कर सकती हूँ, तो हम और सब एक जैसे होंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्यूटर्स, एक ही किस्म के कंप्यूटर्स, एक ही टाइप के, फिर हम उसमें जब सॉफ्टवेयर अलग अलग डालते हैं तो कोई कंप्यूटर फोटोशॉप चलाएगा और कोई कंप्यूटर नहीं चलाएगा। तो हम कॉन्शियस होते हैं अपने सॉफ्टवेयर की वजह से। पहले कॉन्शियसनेस को समझेंगे हम, कॉन्शियसनेस क्या है, तो हम समझ सकेंगे कि फिर कॉन्शियस पेरेंटिंग क्या है। क्या तक ठीक है? कोई सवाल? ओके, कोई सवाल नहीं जी। अब आप बताइए कि अगर आपको कॉन्शियसनेस की समझ आ गई है, आप कह रहे हैं हाँ ठीक है मैं कॉन्शियस हूँ, तो हमारे 5 सेंसेस होते हैं। कौन बताएगा हमारे 5 सेंसेस कौन कौन से होते हैं? और एक छठी हिस्स भी होती है, मगर 5 हिस्स तो होती है, छठी बड़ी खतरनाक होती है वैसे। तो 5 हिस्स हमें बताई गई हैं, साइंस ने पढ़ाया है हमें कि 5 हिस्स होते हैं हमारे। कौन चटनी की सलाहियत है हमारी, सुनने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, फील करना, और एक है देखने की सलाहियत और फील करने की। ठीक है, 5 हो गए, 5 हो गए। अब ये सब सलाहियतें जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके पास हैं? जरा जोर से बोले हैं कि नहीं है? शुक्र है। कोई एक आध अगर हमारे पास सलाहियत ना हो तो हम कहलाते हैं स्पेशल, हम कहलाते हैं डिसेबल्ड। और उन लोगों की फिर बाकी की 4 सलाहियतें बड़ी तेज हो जाती हैं, क्योंकि अगर एक सलाहियत कम होती है तो वो उन 4 पे काम करते हैं, क्योंकि उनको एहसास होता है कि जो 4 मेरे पास है उसमें मुझे कुछ करके दिखाना है। लेकिन जिनके पास 5 है वो बैठ के इंतजार करें कि खुद ब खुद कुछ हो जाए हमारी जिंदगी में। ठीक है ना? ये सारी सलाहियतें अल्लाह ने दे दी। अब इन सलाहियतों को कॉन्शियसली आप किसी डिग्री पे ले जा सकते हैं। इन्हीं 5 सलाहियतों कॉन्शियस होके सादी रखनी है। चखने की सलाहियत मेरे पास है, लेकिन चखना डबल टाइम, यानी कि महसूस करना एक एक खाने की चीज़ को। हाथ मैं मुझे पता है मैं महसूस करती हूँ, लेकिन मैं इसको और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ेगा। जब आप एक कॉन्शियस इंसान हो जाएंगे ना, तो आपकी हर चीज़ में, चाहे आप पेरेंट हैं, चाहे आप औलाद हैं, चाहे आप एक अच्छी दोस्त हैं, चाहे आप किसी के महबूब या महबूबा हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, आपकी कॉन्शियसनेस हर जगह नजर आएगी और आप मुख्तलिफ हो जाएंगे दूसरों से। और लोग आपको देख कर सोचेंगे कि ये कैसे कर लेती है, हम कैसे नहीं कर रहे, ये कैसे कर रही हैं, ये कैसे रुक जाती है, इनको गुस्सा क्यों नहीं आता। क्योंकि हम अक्सर लोगों को देख के सोचते हैं कि ये क्यों ऐसे काम हैं, क्योंकि वो अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल की सीढ़ी पर 10वें या 12वें नंबर पे होता है। ये सीढ़ी है, हम क्लाइंब करते चले जाते हैं। अब क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, ये सीढ़ी हम चढ़े कैसे, है ना? हाँ बिल्कुल। तो अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी मेरे साथ ईमानदारी करनी होगी, ठीक है ना? बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी होगी। आप लोगों ने सबकी आंखें बंद करनी होंगी। मुझे नहीं पता आप आंखें खोल के ऐसे करके बच्चे की तरह देखिएगा। आपने आंखें बंद करनी होंगी और सबने अपना हाथ ऐसे बाहर निकाल के रखना है, ठीक है? इंस्ट्रक्शन सही तरह सुन लें। हाथ बाहर होगा, हाथ ऐसे बंद नहीं होगा, ऐसे होगा बिल्कुल सीधा, ठीक है? और उसके बाद आप महसूस करेंगे कि कोई चीज आपके हाथ में रखी जाएगी। आपका दिल चाहेगा मैं जरूर उसको पकड़ के, नहीं करेंगे, आपने ऐसे ही रखना है। और उसके बाद बाकी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बाद में दूंगी, ठीक है? तो पहले आप सब आंखें बंद करके हाथ आगे करें, बिल्कुल ऐसे सीधा हाथ आगे। और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इधर, तो ऐसे नहीं कि हाथ थक गया नीचे कर दिया, इतना तो हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, ठीक है? एक मिनट, पहले सबकी आंखें बंद, देखो खुली भी, ठीक है? यहाँ से शुरू करें, एक बीच में यहाँ पे आए, आईज क्लोज बिल्कुल, यहाँ पे से शुरू करें। हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी बेटा, एक पीछे से शुरू करें, एक पीछे चला जाए, फास्ट फास्ट करना जरूर। मुझे पता है सब्र नहीं हो रहा है, लेकिन आंखें बंद बिल्कुल। ओके, आप तक पहुंच रही है। जब तक मैं जो बातें कहूंगी उसको गौर से सुनिएगा, ठीक?
پہلے تو آپ اس کا وزن جو ہے ہاتھ کھلنے کے ساتھ ہی فیل کرنے کی کوشش کریں، اوپر نیچے بازو کو کر کے کہ کچھ وزن محسوس ہو رہا ہے. بولنا کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی آپ کو فیل ہو رہا ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. مجھ سے بات آپ کو کچھ بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اوکے، اب جو بھی آپ کے ذہن میں آیا کہ ہلکا ہے، بھاری ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنی مٹھی کو بند کرنا. یہ اب آپ کی مٹھی میں بند ہو گیا، ٹھیک ہے. اب آپ مٹھی کو ایسے ہلائیں جیسے مٹھی کے اندر کوئی کوئن ہے. دیکھیں کتنی جگہ لے رہا ہے، اندر کچھ محسوس ہو رہا ہے ہلتے ہوئے؟ نو نو، کچھ بھی نہیں بولنا. اپنے لیے صرف اپنے ذہن میں کانشیس رہیں کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی ہاتھ کھولیں ایسے، اور اب اپنے انگوٹھے اور چھوٹی جو شہادت کی انگلی کے بیچ میں اس چیز کو پکڑنے کی کوشش کریں جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو اپنے انگوٹھے اور اپنی شہادت کی انگلی میں اس کو گھمائیں، محسوس کریں. اور جو آپ فیل کر رہے ہیں اپنے دماغ میں یاد رکھیے گا پلیز. ہو گیا؟ فیل کر لیا؟ اب اس کو اپنے منہ میں ڈالیے، مگر چبائیے گا نہیں، دانت کے بیچ میں نہیں، صرف زبان پہ، اگر روزہ نہ ہو تو وہ نکالنے کے لیے زبان پہ رکھیں، چبائیے گا نہیں، اور اپنی زبان سے اس کو منہ میں گھمائیں، اور اس کی جو باہر کی اسکن ہے اس کو محسوس کریں. رف ہے، اسموتھ ہے، نرم ہے، سخت ہے. منہ میں گھمائیے، ٹھیک ہے. اب زبان سے ہی اس کو اپنے دانت، پیچھے کے دانت جو ہوتے ہیں ان کے بیچ میں لے جائیے، اور جب میں کہوں تو اس کو کاٹیے. اب جو بھی ٹیسٹ آیا اس ٹیسٹ کو محسوس کیجیے. اب نگل لیجیے، ٹھیک ہے جی. اب آنکھیں کھولیے. میں نے تو یہ پوچھا ہی نہیں، مجھے تو پتا ہے آپ کو، یہ تو میں نے نہیں پوچھا کہ یہ کیا تھا. دیکھیے، نوٹ کیجیے گا کہ یہاں پہ تقریباً 25-30 لوگوں نے ایک ساتھ بولا کشمش. کیوں؟ کیونکہ ہمیں شوق ہے صرف ججمنٹ دینے کا. یہ ہے طلاق شدہ، یہ ہے جو شراب پیتا ہے، یہ ہے دیکھو چرسی. میں نے تو نہیں آپ سے پوچھا کہ کیا چیز ہے. سوال تو ابھی کروں گی میں آپ سے، کیونکہ ہم بے چین ہوتے ہیں جواب دینے کے لیے. یہ جواب نہیں تھا، یہ آپ نے اس کو ایک لقب دے دیا، لیبل، کشمش. یہ ہماری عادت کا حصہ ہے، کیونکہ ہم کانشیسلی چیزوں کو نہیں کرتے. مگر جو بولے نہیں، ہو سکتا ہے شاید وہ بول رہے ہوں کہ یار یہ کیا کیا چیز تھی، کیسے کیسے. اب کشمش کو آپ ساری زندگی سے پہچانتے آئے ہیں. ہاں، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کشمش جس کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا ہو، کبھی نہیں کھایا ہو، ہے نا. لیکن آج آپ کی آشنائی کشمش کے ساتھ سلو ہوئی ہے. اب ذرا کشمش کو سمجھائیے گا مجھے. ہاں، ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ذرا میں نے محسوس کرنا چاہا، آپ نے کہا مٹھی بند کریں، تو مجھے لگا موم ہونے سے کوئی. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ایسے فیل کریں، تو مجھے کوئی کانٹا جیسے چبھنے لگا. پھر میں نے جب آپ نے بولا زبان پہ رکھیں، تو پھر میں نے فیل کیا کچھ نرم ہے، لیکن یہ کھانے کا یہ کیا ہے. جب دانتوں کے پاس آپ نے چبائے تو پتا چلا کشمش ہے. ویری گڈ. تو آپ نے تو ابھی اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا کہ پہلے مجھے لگا یہ موم ہے. اب میں چاہتی ہوں آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے یہ بتائے کہ میں کشمش کو پہچانا ہے میں نے آج، کہ کشمش میں کیا کیا چیزیں ہیں. بتائیں، کشمش کو ڈسکرائب کریں. جی جی. کشمش ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نرم، تھوڑا سا کھٹا، تھوڑا سا میٹھا، اور تھوڑا سا خدرا جیسا پن کے اندر ہے، وہ کریش پن جیسے وہ چبانے میں محسوس ہوا. اور پھر
जब मैंने देखा कि जब मुंह में डाला तब उसका कोई टेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैंने बाइट किया तब पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा मीठा था। कोई नई चीज किशमिश के बारे में आज पता चली ये सब करके? जैसे आपने कहा कि बगैर काटे हुए उसका कोई टेस्ट नहीं था, ये बात पता थी पहले आपको इस तरीके से? और लाइटर वेट? हाँ, लाइटर वेट, स्मूथनेस, स्मूथ था। स्मूथ था। अच्छा, आपको स्मूथ मिला। देखिएगा, इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। अपनी जबान पे रखा तो मुझे लगा कोई कागज का टुकड़ा है जिसे तोड़ मोड़ के वो मुंह में रखा है मैंने। हाँ जी, लेकिन जब दांत में लेकर गए तो पता चला कि ये किशमिश है। सही। और मुझे और इमोशनल इंटेलिजेंस वाले आंसर्स चाहिए, कॉन्शियस आंसर्स। अस्सलामुअलैकुम सफिया जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, किशमिश की स्किन के बारे में मुझे नहीं पता था, कभी इतना टाइम ही नहीं हुआ उसको फील करने का। तो पहली बार जब एक्चुअली लेके फील किया तो पता चला कि किशमिश की स्किन जो है वो रफ होती है और बबली होती है, वरना कौन देखता है। हाँ जी, और बाहर से खुरदरा, थोड़ा सा नरम और अंदर से बहुत मीठा। ये सब पहले से पता था आपको ना? हाँ, उसके बारे में। अच्छा, खुरदरेपन का नहीं पता जी। एलिजाबेथ, हाँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ कि हमें धोखे से खाना चाहिए क्योंकि रेती। So now you're coming to emotional intelligence, ठीक है? अब देखिए इनकी सोच की और एक लेवल ऊपर गया है। ये ऊपर क्या गई? इसने सोचा पता नहीं ये क्या चीज, किसी को ऐसा डर नहीं लगा कि क्या ले रहे हैं हाथ में? बोले या नीचे। अच्छा हाँ, बोल रहा। अच्छा, मैं काफ़ी खौफजदा थी कि पता नहीं एक्टिविटी क्या है, कोई चुंटी मुंटी या कुछ और ऐसी। तो जब मेरे हाथ पे रखा गया था तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी और इससे पहले मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, लेकिन आपने जब वज़न कहा तो लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मेरा हाथ भारी हो गया है। तो मैंने एक्टिविटी के दौरान ये महसूस किया कि लफ्ज़ों का बड़ा असर होता है आपकी सोच के ऊपर, क्योंकि जैसे ही आपने वज़न कहा तो मुझे लगा कि बहुत कोई भारी चीज़ है मेरे हाथ में। जब मैंने इसे छुआ तो फ़ौरन मेरे दिमाग ने मुझे बता दिया कि ये किशमिश है। तो इसके बाद से कहानी बिल्कुल क्लियर होगी, तो मुझे पता था इसका टेस्ट भी कैसा है और ये कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। मगर मेरे साथ तो बिल्कुल बरक्स हुआ जब आपने कहा कि इसका वज़न आपको, तो मैंने उस वक्त सोचा तो मुझे बिल्कुल उसका वज़न लगा ही नहीं जब रखा था, जब महसूस हुआ। लेकिन जब आपने कहा कि इसका कोई वज़न है तो मुझे लगा कि कोई हाथ में वेट कुछ है ही नहीं। इट बिकेम अ पार्ट ऑफ माई हैंड। लेकिन सबसे फनी चीज़ ये है कि मैंने समझा खुबानी का टुकड़ा। मुझे किशमिश लगी ही नहीं। मतलब मैं तो बिल्कुल किसी और ऐसे खट्टी मीठी तो ये तो खुबानी है। मे बी आई वाज इन द स्कर्टू मोड, आई डोंट नो। यहाँ से कोई The biggest thing is कि इस ऑडिटोरियम में इतने सारे लोग बैठे and all of us trusted you and ate it. इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए अब ये एक सीढ़ी और चढ़ गई ऊपर। अब ये इसका जहन किस चीज़ पे गया कि आपने जो हमें हाथ में जो चीज़ दी वो हमने इसीलिए, हमें डर नहीं लग रहा था मुंह में डालने में क्योंकि कौन दे रहा है वो ट्रस्ट है हमको। तो कितना जी आपने कहा? मुझे तो बिल्कुल एक जो है अजीब सी फीलिंग सी हो रही थी, क्योंकि ये एक्टिविटी जो थी आपके बातों पर थी सारी है कि आप क्या कहने जा रही हैं और क्या क्या आप जो है इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। तो जैसे ही मैंने हाथ सीधा किया, आंखें बंद थी, तो ऐसा फील हुआ कि कुछ रखा गया। मैंने कहा शायद ये मेरा अपना माइंड है कि कोई गर्म चीज़ छोटी सी रखी गई है मेरे। आपको उसकी कोई हीट फील? हाँ, इस तरह जो है फील हुआ। फिर उसके बाद जब मुंह में डाला तो वो खुरदरा और जो है स्टाइल का थोड़ा उसमें जो शेप फील हो रहा था। मैं समझा चॉकलेट है, ये कोई टुकड़ा चॉकलेट। कितनी किशमिशें बची हैं? अच्छा, अब सबके हाथ में एक एक किशमिश दोबारा दें और बिल्कुल जागते हुए आप उसको लें अपने हाथ में एक एक, और आप जान के देखें कि आप क्या खा रहे हैं। और इस बेचारी सी किशमिश को बोले आज मैंने तुम्हें पहचाना। बोले बोले पहचाना, ऐसे ऐसे तो कहते थे आज मुझे
तुम गर्म हो, आज तुम्हें पता चला कि खुबानी जैसी हो। जी तो उससे बात करें, किशमिश से थोड़ा मुंह में न डाल दें, बात करें उससे। इनको माइक दीजिएगा। अच्छा जी, अब आपका नाता ये किशमिश के साथ कॉन्शियस लेवल पे हो गया। पहले आप किशमिश को अनकॉन्शियसली खाते थे, आपको नहीं पता था कि ये भी इसकी ये चीजें हैं, ये सॉफ्ट है, वैसे तो पता था, लेकिन आज आपका रिश्ता किशमिश के साथ एक अलग लेवल का हो गया है। कभी भी आइंदा किशमिश आपके सामने आएगा, आपको ये क्लास याद है, ठीक है? सही जी, हाँ हाँ, मदर्स की क्लासेस की होगी। ठीक है जी, तो आप कॉन्शियस हो गए किसके मामले में? हाँ, बस एक ही चीज के मामले में। वैसे अभी इतनी जल्दी इंसान को कॉन्शियसनेस नहीं आती है। आप कॉन्शियस हो गए किशमिश के मामले में कि अब आप कहोगे हाँ, इससे मेरा एक रिश्ता एक कदम और सीढ़ी चढ़ गया। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने जिन लोगों से के साथ अपनी जिंदगियां गुजारने का फैसला किया, या जो बच्चे हमारे पास ये बेबी बैठा है, कितनी बार हमने उसकी हर चीज़ को महसूस किया। तब हमने आंखें बंद करके, आपको पता है जो स्कल्पचर बनाते हैं, जो मिट्टी से मूर्तियाँ बनाते हैं, वो अगर देखना कि उनको आता है ना, तो भी वो आपके चेहरे को आंखें बंद करके देखते हैं, महसूस करते हैं। ऐसे ऐसे पूरा चेहरे पे हाथ फेरेंगे आंखें बंद करके, और फिर उसके बाद वो मूर्ति बना पाते हैं। क्योंकि ये जो देखने की सलाहियत है ना, ये बहुत पावरफुल होती है। जब हमारी आंखें खुल जाती हैं तो ये इतनी पावरफुल होती है कि हमारी बाकी के हिस्से जो है ना पीछे चली जाती है। तो जब हम आंखों को बंद करके चीज़ों को सुनते हैं या फील करते हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल उन बाकी 4 हिस्से में बहुत बढ़ जाता है। तो अल्लाह ने हमें ये दी है सलाहियत देखने की, लेकिन कभी कभी आंखों पे पट्टी बांध के आपस में बैठें, अपने बच्चे को साथ बिठाएं सामने और आंखें बंद करके उसको महसूस करें, उसके बालों को टेक्सचर महसूस करें, उसके बालों का टेक्सचर कैसा है। हमें पता है हमारे बच्चे के बाल घूंघे वाले हैं, लेकिन जब आप हाथ में लेंगे तो आपकी उसकी घूंघर के इंच बाय इंच महसूस होगा कि कितनी इंच के बाद उसका बाल टर्न हो रहा है। टाइम दें, कॉन्शियस होकर अपने बच्चों से मिलें। रिश्ता आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा जब आप कॉन्शियस होकर पेरेंटिंग करेंगे हर मामले में। एक होता है खाना खिला देना, एक होता है बैठ के खाने के ऊपर गुफ्तगू करके उसको खिलाना, यदि खा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं हर दाने के बारे में। आपने देखा होगा अंग्रेज जो होते हैं वो अपने बच्चों को खाना सारा मिक्स करके नहीं खिलाते, नोटिस किया? हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड है, चावल, आलू, गोश्त, खिचड़ा पकाओ, मिक्स करो, बॉल बनाओ, टेबल खा लो। क्यों? क्योंकि हम अपनी आसानी ढूंढते हैं। अब वो बच्चा जब उसको खाता है उसको कुछ भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो माँ के लिए बड़ा आसान है, खिचड़ा पकाओ और रख दो सामने और वो खा ले। इसके बरक्स जो दूसरी जो अंग्रेज औरतें हैं जिनका कॉन्शियसनेस का लेवल थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा है कि स्कूल लेवल पे उनको ये एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। उनकी कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आपके सेंसेस तेज होते हैं। ये हिस्स 5 हिस्स जो हैं और एक छठी हिस्स भी है, बहुत सारी तेज करते हैं उस वक्त जब वो 2-2.5 साल के। तो उनके आगे खाना ऐसे सजाया जाता है, गाजर, मटर, गोश्त का 1 पीस, आलू के पूरे गोल गोल, और फिर बच्चे के आगे रख देते हैं, बोलते हैं क्या खाना है पहले। तो वो अपनी मर्जी से उठाता है कि अच्छा अब इसको टेस्ट करो। जब वो गाजर को खाता है तो उसमें से सिर्फ गाजर का ही टेस्ट आता है, वो मिक्स नहीं होता खिचड़ा। मटर उठाता है तो उसका टेस्ट उसको अलग आता है, आलू का टेस्ट अलग आता है। लेकिन मैं नहीं समझती कि शायद हम में से कोई भी इस तरह से खाना खिलाता है बच्चों को कि प्लेट में ऐसे अलग अलग चीज़ें रखी हुई हों और उनसे आप शक्लें बना दें बच्चों को, कि मटर की आंखें बना दें और गाजर से नाक बना दें, और बच्चा इतनी मज़े से खा रहा होता है, मैं ये खा रहा हूँ, आम खा रहा हूँ। लेकिन इस एक्टिविटी से, अलग अलग खाना रखने की एक्टिविटी से भी बच्चे का कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता है। बचपन से उसको प्रैक्टिस होती है मुख्तलिफ टेस्ट
वो समझने की, ठीक है? तो यहाँ तक ठीक है? ओके। नेक्स्ट पे है हमारा कॉन्शियस पेरेंटिंग, ठीक है? आ जाए। मैं पता है आज क्यों लिख कर लाई हूँ, वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं लिखती, लेकिन मुझे क्योंकि टाइम बहुत कम दिया गया है, यानी 3 घंटे तो मुझे तो इतने में रैपअप करना बड़ा मुश्किल लगता है। क्या हो गया? अरे जी, अच्छा, अब कॉन्शियसनेस का एक और इससे बहुत बड़ा लेवल है। कॉन्शियसनेस, अगर हम चाहते हैं कि हम पहले कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग्स बने, यानी हमारा लेवल कॉन्शियसनेस का अगर बढ़ा, खुद ब खुद हर रोल में, हमारे ये रोल है ना जो हम यहाँ पे जिंदगी में प्ले करते हैं। मेरे कितने रोल हैं जिंदगी में? मैं एक माँ भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, एक बहन भी हूँ, एक दोस्त भी हूँ, एक टीचर भी हूँ, और क्या क्या हूँ मैं? अब तो मैं दादी भी हूँ, एक औरत तो मैं हूँ, मगर मेरा रोल, जैसे कि मेरे रिश्तों की बात कर रही हूँ कि मेरे रोल में मैं जिस तरह अपने बच्चे के लिए एक्ट कर रही हूँ, मेरा बेटे बड़े हो गए हैं, उनके साथ मैं जिस रवैये से बात कर रही हूँ, जब मैं अपने पोते को गोद में उठाती हूँ तो मेरा रवैया चेंज हो जाता है। जैसे जब मैं अपने अब्बू के पास जाती हूँ तो मैं एक अलग लहजे से बात करती हूँ, तो जब मैं आप लोगों के पास आती हूँ तो मेरा लहजा और डिफरेंट होता है। मैं हर रोल में अपने आप को चेंज करती हूँ कॉन्शियसली। लेकिन जब कुछ लोग कॉन्शियस लेवल पे नहीं होते, वो कहते हैं मैं तो बस ऐसा ही हूँ, मैं हर एक के लिए ऐसा ही हूँ। तो अपनी वाइफ को भी यही कहता है, एक शख्स ऐसा हो या अगर बीवी हो, वो अपने शौहर को ये कहती है बस मैं तो ऐसी ही हूँ, आप चाहे मेरी अम्मी से पूछ लें, मैं हर एक से ऐसी बात करती हूँ, मैं ऐसी हूँ बस। ये कॉन्शियसनेस का लेवल नहीं है। कॉन्शियसनेस का लेवल ये है कि आप जिस रोल में हैं उस रोल को आप अंडरस्टैंड करें कि यहाँ मुझे किस लबो लहजे से बात करनी है, यहाँ मुझे किस लबो लहजे से बात करनी है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो बॉस के आगे एक अलग लबो लहजे से बात करते हैं, घर में आते हैं वो समझते हैं कि यहाँ मैं जो चाहे कर सकता हूँ, बॉस के आगे वो नहीं बोलते। तो कॉन्शियसनेस का लेवल ये है कि हम पहले अंदर जाएं अपने, वो सारी हमारी चीज़ें जो इसके लिए हम कंडीशन हुए हैं, एक वर्ड है तो वो वर्ड यहाँ लिख दो, कंडीशन। कंडीशन करना, कल आपको डॉक्टर किशोर बता रही थी कि जब एक अब्यूज़र किसी बच्चे को अपने पास बुला के उससे दोस्ती करता है, ठीक है, दोस्ती तो मैं भी बहुत प्यार करती हूँ बच्चों से, लेकिन मैं अब्यूज़र नहीं हूँ, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये अब्यूज़र है ये नहीं है। जो अब्यूज़र बुला के जो दोस्ती करते हैं, हर ख्वाहिश बच्चे की सुनते हैं, बात उसको लगता है यही मेरा दोस्त है, तो उसको कहते हैं, उस बच्चे को वो ग्रूम करता है। वैसे ग्रूमिंग का वर्ड का मतलब बुरा नहीं है, ग्रूमिंग का वर्ड है कि आप मैं ग्रूम हो गई, हम आप सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन उस सेंस में जब अब्यूज़र बच्चे को अपने मिजाज के हिसाब से ढाल रहा होता है, उसको बोलते हैं उसको ग्रूम करना, वो उसको ग्रूम करता है अपने मिजाज के लिए। तो वो बच्चा बिल्कुल जैसा वो चाहता है वैसे वो जैसे रोबोट की तरह उसके साथ, बिल्कुल उसको फील ही नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसी तरह से हम जो हैं वो बचपन से, जब हम छोटे से थे, हमें हमारे माँ बाप ने कंडीशन किया है, ये वर्ड है कंडीशन, हम कंडीशन हैं किस चीज़ के लिए कि हमारे माँ बाप ने हमें वो चीज़ें बताई कि जो उनके घराना में, हम अपने ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करते हैं, हमने ये सुना, हमने ये सुना, हमने सुना सुना सुना, हम बड़े हो गए, हम कंडीशन हो गए। अब उस कंडीशन चीज़ को कि हम ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करते, तोड़ने से पहले हमें डर लगता है। हम कहते हैं यार ये तो मैंने किया तो नाराज़ हो जाएंगे, ये मैं नहीं कर सकती, हम उसके ऊपर सोचते ही नहीं है, हम कंडीशन होते हैं, जैसे एक लेबल होता है ना, और हम मुश्किलात से बचने के लिए उसी कंडीशन रवैये में रहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई खानदान में लड़ाई हो जाए या हम कोई ऐसी बात कह दें कि जिससे, अगर किसी के घर में ये तरीक़ेकार है कि हमेशा मर्द पहले खाना खाते हैं, औरतें खिलाती हैं, और बाद में फिर जो बचा खुचा होता है फिर बच्चे खाते हैं, फिर जो और बच जाए वो औरत खाती है। बचपन से देखते 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 आए हैं, हम कंडीशन हो गए हैं। अचानक से अब आपके घर में एक ऐसी बहू आती है जिसका कॉन्शियसनेस का लेवल स्टेप सीढ़ी चढ़ी हुई है, उसको सोचने की आदत है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छी स्कूलिंग मिली, अच्छी कॉलेज मिली, वो यूनिवर्सिटी भी गई, उसने दुनिया देखी, तो उसके जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो हाई है। वो आके ये चीज़ देखती है, वो कहती है सब कंडीशन है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन ये चीज़ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा क्यों होता है कि औरत आखिर में बचा कुचा खाती है?
दूसरी औरतों से जब वो बात करती है कि अम्मी सुने ये तो सही नहीं लग रहा मुझे कि आप आखिर में खाती हैं, आपके लिए तो कोई गोश्त कोई बोटी नहीं बचती, तो वो कहती है बेटा बस ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। अगर कोई ये कहते हैं कि ऐसे ही होता है तो उसका मतलब वो कंडीशनड है, वो अपनी कंडीशनड हालत से निकलना चाहता ही नहीं है, इसलिए कि उसको पता है कि जैसे ही मैं इस हालत से निकला घर में एक बेचैनी शुरू हो जाएगी, हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। कॉन्शियसनेस की सीढ़ी जैसे जैसे आप चढ़ोगे आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, ये याद रखिएगा। एक इंसान जो बेहोश है, एक इंसान जो आपकी तरह मेरी तरह होशमंद है, इस वक्त बेहोश हो जाने से दर्द फील होता है, एनेस्थीसिया देते हैं ऑपरेशन करने से पहले बेहोश करते हैं, हम बोलते हैं क्यों करते हैं कि अगर पेट कटे तो फील ना हो, तो क्या हम फिर भी ये बोलेंगे किसी को सुनो दुनिया बड़ी गम की जगह है, बड़ी दुखों की जगह है, अल्लाह ताला बेशक मुझे दुनिया में भेज दे मगर 50 साल तक मुझे बेहोश रखेगा, फिर जब जाने का टाइम आए तो मुझे ले जाएगा क्योंकि मुझे कोई गम नहीं उठाना, बोलते हैं ना। आप क्या कोई हम में से बोलेगा ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि जहाँ इतने दुख और तकलीफें हैं वहाँ मेरे मजे भी तो हैं, रहना है मुझे। मैं चाहते हुए भी अपने आप को बेहोशी की दवाई पूरे जितने साल में जिंदा हूँ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं इस चलने फिरने को, रिलेशनशिप, रिश्ते बनाने को, इन सब चीज़ों को भी इंजॉय करती हूँ। तो जितनी आप कॉन्शियस होती चली जाएंगी इतने आपके आड़े जो बाहर आ रहे थे ना वो बड़े होते जाएंगे। ये एक निशानी है कि अब आप कॉन्शियस हो रही हैं, ये आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमारी कौम 80% अनकॉन्शियस है। जब हमने से सारी हमारा पूरा नेशन कॉन्शियस होने लगेगा ना, फिर हमें मुश्किल कम होगी, क्योंकि हमें लगेगा कि अच्छा अब सब हमको समझते हैं, फिर हम एक स्टेप और आगे उठाएंगे कि चलो अब क्या करें इसके बाद। इस वक्त ऐसा नहीं है, इस वक्त ज्यादातर वो कंडीशन है, कल्चर के कंडीशन है, घरेलू जो हमारे रस्मों रिवाज के कंडीशन है, बस बैठ गया दिमाग और हम उसको तोड़ते हुए सोचते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता। मैं अभी इस वक्त दीन की बात नहीं कर रही, ठीक है? दीन हमारा रूहानी एक चीज़ है, अगर दीन हमें किसी चीज़ से मना करता है वो एक ब्लैक एंड वाइट है, उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे इस वक्त। मैं बातें कर रही हूँ जिसका दीन में कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। दीन ने कभी नहीं कहा कि खानदानों में शादी करो, उल्टा हदीस पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने खानदानों से बाहर निकल के शादी करो ताकि दीन फैले, ऐसा। और हमारी साइंस हमें क्या बताती है कि सबसे इंटेलिजेंट बच्चे कहाँ पैदा होते हैं? ये तो मैं यहाँ बैठी हुई हैं साइकोलॉजिस्ट। इंटेलिजेंट बच्चे, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का IQ हाई हो तो सेम खानदान में शादी ना हो, अकल का लेवल कम हो जाए। ज़हीन बच्चे पैदा होते हैं जितने दूर किसी और ही ट्राइब में शादियाँ करें। तो हमारे नबी ने जब ये बात बोली खानदानों से बाहर शादी करो, तो उनको तो साइंस आती थी मगर वो साइंस की जगह से बात नहीं करते थे, वो रूहानी जगह से बात करते थे। लेकिन जब उनकी बातों की डेप्थ में आप जाएंगे तो आपको साइंस ही साइंस मिलेगा। तो उन्होंने ये कह दिया और फिर कुरान ने कह दिया ढूंढो। हमने तो तुम्हें इशारे देती है, अब ढूंढो, यानी ढूंढो मतलब रिसर्च करो। रिसर्च किसको कहते हैं? ढूंढने को कहते हैं। तो कुरान कह रहा है रिसर्च करो। हम कितनी रिसर्च करते हैं? हम तो रिसर्च नहीं करते कभी। आज आपको अगर ये पता चल गया कि मेरा कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है, आपके पास सवाल होना चाहिए, सुनो मेरा कॉन्शियसनेस का लेवल कहाँ है, तुम्हारा कहाँ है, कैसे पता चलेगा? इसको नंबर कैसे दें हम? मेरा कितना है, आपका कितना है, दे सकते हैं नंबर? कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ 1 से 10 तक का आपके पास पैरामीटर है, 1 2 3, 1 का मतलब बिल्कुल लो, 10 का मतलब हाई, तो अब आप अपने आप को नंबर दें दिमाग में, कितने कॉन्शियस हैं आप? दे दिया? 2-4 लोग बताएं। आप बताएं येलो टी शर्ट, आपका कॉन्शियसनेस का क्या लेवल है आपके ख्याल में? किशमिश की एक्टिविटी के बाद किशमिश के लिए तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये मैं आप लोगों को समझाया तो मैंने सोचा कि आप लोग सुनो और देखो कि आप क्या कह रहे हैं, तो फिर मैं भी अपनी कॉन्शियस लेवल जो है उसको बड़ा ऊपर ले जाऊँ। नहीं, वो तो ऊपर आप ले जा रहे हैं। अभी आपके ख्याल में आपका कॉन्शियसनेस लेवल 1 to 10 की सीढ़ी में कहाँ है? कोई मसला नहीं, मुझे लगता है मेरा 4 पे है। मेरा ख्याल है कि मैं इसको
वो टिक मार्क नहीं कर सकता है 4 या 5। ठीक है, तो और थोड़ा समझने की जरूरत है जी। जो लोग समझ गए वो अपने आप को दे सकते हैं। मैं कह रही हूँ कि मुझे लगता है मेरा 4 पे है। अब आप बताएं मुझे हाथ से। मैडम आपका अगर 4 है तो फिर हमारा तो 2 जैसे 5 करने में आपको बताता हूँ, आपका 4 है तो फिर 2 है। ठीक है, एक पैरामीटर तो बनाना था ना, तो फिर वहां से ही हम शुरू करते हैं। चलें, और कोई जिसकी कॉन्शियसनेस का लेवल ज्यादा होगा वो अंदर से उसके वाई क्यों ज्यादा निकलता होगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है, मैं दुनिया में क्यों आई हूँ, मेरी दुनिया में आने का मकसद क्या है, ये सारी चीजें। मैं ये कहना चाहूँगी, जब हम लोग केरल नहीं आए थे तो मुझे ऐसा लगता है हम 0 पे थे। कॉन्शियस लेवल, ये कॉन्शियस का वर्ड ही नहीं पता था, इसका मतलब क्या है, क्या करना चाहिए। कि जो माँ बाप से अपने जो चीज़ें देखी सुनी उसी के साथ बड़े हुए, कंडीशन थे जी, आप कंडीशन थे जी, बिल्कुल ऐसे ही थे हम सब। और अब यहाँ आने के बाद आपसे जो चीज़ें सीखी, अब हमें ऐसे लगता है कि हम 2% थे तो कम से कम आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है, गुड। और कोई? हम लोग जब यहाँ आए तो हम लोग तो बिल्कुल 0 पर ही थे, तो अभी हम खुद को समझ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे चलकर हम खुद को समझेंगे। लेकिन हमारे जो बच्चे यहाँ पे हैं वो क्यों, क्या, कैसे वो इस लेवल पर पहुँच चुके हैं, मतलब उनकी पैदाइश में ही उनके 2 था, तो जब तक ये इंशाल्लाह ताला बड़े होते चले जाएंगे तो कैसे इस पर तो पहुँच चुके हैं। जी हाँ रेहान। मैं अपने आप को 8 पे 20% हमें सबकॉन्शियसनेस भी होनी चाहिए। सबकॉन्शियसनेस की तो अभी बात नहीं हो रही है, अनकॉन्शियस या कॉन्शियस की हो रही है। सबकॉन्शियसनेस तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। 8 पे कॉन्शियसनेस 8 पे हैं आप कॉन्शियस। दैट्स ग्रेट। तो आई बिलीव कि कभी कभी आप इतने कॉन्शियस नहीं होते, कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कभी किसी चीज़ से जला हो तो फायर को देख के फ़ौरन कॉन्शियस हो जाता है कि अगर मैं इसके पास गया, या फ़ौरन रिफ्लेक्ट करता है कि मेरे साथ पास में ऐसा कुछ हुआ, तो फ़ौरन कॉन्शियस हो जाता है। कभी कभी कोई पानी को देख के कॉन्शियस हो जाता है, कोई इसका रिलेटिव या कोई सिचुएशन, कोई हादसा उसके साथ पास में हुआ, तो कॉन्शियसनेस ज़रूरी नहीं है हम बाय बर्थ कॉन्शियस हो या किसी की वजह से कॉन्शियस हो, अनकॉन्शियस सिचुएशन की वजह से भी हो सकते हैं, किसी मेमोरी की वजह से भी हो सकते हैं। तो मेरा कॉन्शियसनेस लेवल तो 8 है। वेरी नाइस। ये इस चीज़ से आप अग्री करते हैं कि हमारा कॉन्शियसनेस लेवल हमारी ज़िंदगी के वाक़यात के साथ साथ बढ़ता है। तो अगर मेरी ज़िंदगी में कोई दुख ना हो, मतलब मैं जब पैदा हुई तब से लेकर मैं झूले में ही बैठी हुई हूँ, झूले में ही मैं 40 साल की हो गई, मुझे झूले में ही खाना दिया जा रहा है, मेरा कॉन्शियसनेस का लेवल कहाँ होगा? हाँ हो गई थी ना? नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जो दुख आते हैं जिंदगी में वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं या सजा है? हाँ, जितने वाक़यात होंगे उससे कॉन्शियसनेस हमारी बढ़ती है या कम होती है? सीखते हैं। हाँ हाँ, तो हम जो हैं वो दरअसल छुपे हुए हैं, डिस्गाइज में हैं हमारे दोस्त, हमें सिखाते हैं। लेकिन ज़रूरी होता है कि हमें किसी साथी की ज़रूरत होती है, जो हमारे साथ एक दोस्त हो जिससे हम शेयर कर सकें, फिर वो हमें ये ताकत देता है कि हाँ ठीक है चलो इससे ऐसा करते हैं, ये तो वाक़या हो गया, हम देखते हैं इससे हमारी और तुम्हारी कॉन्शियसनेस का लेवल कहाँ पहुँचा, चलो देखते हैं कि इससे हमने सबक क्या सीखा। बजाय कि हम उसी जगह पे जो अंधेरी जगह है जहाँ हम बहुत उदास है, दुखी हैं, उसी के अंदर बैठे रहे हम, तो हम कॉन्शियसनेस के उसमें से हमें बाहर निकलना पड़ेगा और फिर पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा ये क्या हुआ था, यहाँ से मैंने क्या सीखा, और अगली बार आगे जाऊंगी तो वो गलती जो वहाँ हुई थी उससे सीख कर आगे जाऊंगी। क्या मुझे उसको दोबारा करना है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है आप कह रही हैं मुझे फिर एक बार इसको ट्राई करना है, फिर एक बार इसको ट्राई करना है, या आप कहती हैं नहीं ये चीज़ मैंने नहीं करनी दोबारा। ये आपकी मर्जी है, जो भी आप सोचें, ठीक है। अब एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, एज अ कॉन्शियस पेरेंट, ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ,
जैसे जैसे, अच्छा नहीं ऐसे नहीं, पेरेंट्स का एक बहुत मशहूर लाइन है जो बच्चों को बोलते हैं, हम भी तो बड़े हो गए थे, हमने भी तो, आखिर हम भी तो कभी जवान थे, एक तो भी भाई जवान नहीं हुए हो, ठीक है, हम तो कभी अपने माँ बाप को जवाब नहीं देते थे, हम तो ये नहीं करते थे, हम वो नहीं करते थे, हमारे ज़माने में तो ये नहीं होता था, और ये यूँ यूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए, एक कॉन्शियस पेरेंट, क्या उसकी जिम्मेदारी होगी या उसका कॉन्शियसनेस, अगर वो कॉन्शियस है तो क्या वो इस चीज़ से भी कॉन्शियस होगा कि ज़माने के एतबार से चीज़ें चेंज हुई हैं? क्या ये कॉन्शियसनेस उसको कराएगी या बेहोशी करवाएगी? अगर वो बेहोश हुआ था 1990 में, ठीक है, कोमा में रहा, कोमा में रहा, कोमा में रहा, कोमा में, 2021 में उसको होश आया, तो वो जब उठेगा, जो 100 साल जो सूरह कहफ की तर्जमा पढ़ा है, तो जब वो सोकर उठे थे तो वो बाहर निकले, तो उस वक्त वो वहाँ पे वो जो सिक्का था वो भी इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो वो बेबदहाल बाजार में घूम रहे थे कि ये क्या हो गया, ज़माना पूरा बदल गया। सूरह कहफ की किताब की जरूर तर्जमा पड़ेगा, बहुत मज़ेदार कहानी है, बच्चों को सुनाने वाली कहानी है, और उसमें बड़े लेवल की कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस, 100 साल जो सो गए थे। तो अगर मुझे आज कोई सुला दे, मैं सो जाऊँ और मैं फिर 50 साल के बाद उठूँ, तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आएगी कि मैं क्या करूँ। मतलब मैं देखूँगी ये क्या हुआ, ये तो मैं तो एक डब्बे जैसे टीवी होता था इतना बड़ा सा, उसमें ब्लैक एंड वाइट आता था, ये तो सबके पास हाथ में चीज़ें, मुझे तो उसको चलाना भी नहीं आ रहा, उसको उठाना भी नहीं आ रहा, उसको ऑन करना नहीं आ रहा, चार्ज करना नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं सोकर उठी, जिस बच्चे को मैं छोड़ के गई थी, मेरी गोद में 1 साल का था, वो 50 साल का हो गया या 40 साल का हो गया, मैं उससे बॉन्ड कर सकूंगी 1 साल के बच्चे को छोड़कर? कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर मैं सो जाऊं, अपने छोटे साल का बेबी है गोद में, अगर इस वक्त मैं सो जाऊं और मेरी आंख खुले तो ये 25 साल का हो, आपने उसको बड़े होते हुए नहीं देखा, तो आपकी कनेक्शन जो है ना वो नहीं बनेगी उसके साथ, क्योंकि आपने वो सब उसके नशे वो फराज नहीं देखे जहाँ जहाँ से उसने वो गलतियाँ की, जिस टाइम में उसका दिल टूटा, जिस टाइम में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका दिल तोड़ा, या कब उसने कोई और नहीं बनाई, या उसने वो फेल हुआ, टीचर ने क्लास से निकाला, वो सारे नशीबो फराज आपने उसके नहीं देखे। कब उसके किसी दोस्त ने उसको सिगरेट पहली बार पिलाई, कब उसने सोचा कि मैं सिगरेट में कुछ मिला के चखता हूँ आज, जो भी उसके साथ जो भी वाक़यात हुए, आप तो यहाँ सोई थी और यहाँ उठी और आपने कहा या अल्लाह ये तुम क्या बन गए, बगैर उसके सफ़र को जाने, उसका सफ़र था। मैं आज आपको एक बात बता रही हूँ कि बेहोश हुए बगैर हम बेहोश ही, हमें हमारे नौजवान बच्चों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उससे हमें कोई सरोकार ही नहीं है, क्योंकि हम कहाँ हैं? मैं तो ऐसी बेटी नहीं थी, मैं तो कभी ऐसे नहीं कर, क्योंकि आप अभी भी 1900 जो भी आपने जिसमें कि आप थे वहीं आपका जहन अटका हुआ है। कॉन्शियस पेरेंटिंग आपसे डिमांड करती है कि आप आने वाले जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको अंडरस्टैंड करें, उनके साथ उस दौर में चलें। एक तो ये लफ्ज़ बोलना छोड़ दें, आपका ज़माना पता नहीं, हमारे ज़माने में जिस दौर में आप जिंदा हैं ये आपका भी ज़माना है। सिर्फ वो शख्स कह सकता है ये मेरा ज़माना नहीं है जो अभी हमारे बीच ही नहीं है। आप इधर हैं इस ज़माने में, 2021 में सांस ले रहे, जो भी बाहर चीज़ें हो रही हैं, चाहे आप खुद उसके साथ नहीं खेल रहे, उसका असर आप पे होता है कि नहीं होता है? पहले बताएं, आपके बच्चा पबजी खेल रहा है, उसका असर आप पे होता है? आपका बच्चा गंदी मूवीज देख रहा है, उसका असर आप पे होता है? वो नशा कर ले, आप पर असर होता है या आप बोलते हैं नहीं वो तो उसने नशा किया, मैंने थोड़ी किया? बता दें, बेटा भागकर किसी से शादी कर ले, आप बोले मर्जी मेरी, मैंने थोड़ी किया, उसने किया, असर होता है? जब तक आप इधर हैं, इस जमाने में हैं, ये जमाना आपका भी है और आपके बच्चे का भी है। तो अगर आपके बच्चे भी आपको ये बोले ना कि मम्मा आपके जमाने की बातें बोलो, ये भी मेरा भी जमाना है, लेकिन ये कहने के लिए आपको मॉडर्न होना पड़ेगा, आपको मॉडर्न होना पड़ेगा। अब दोनों चीजों का फर्क भी समझे, मॉडर्न होना और वेस्टर्न होना, ये दोनों अलग बातें, मिक्स नहीं करें। मॉडर्न, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मॉडर्न थे,
उस जमाने में जो चीजें औरतों के साथ होती थी उन्होंने आकर उसको खत्म किया। वो मॉडर्न थे, उन्होंने कहा औरतों को राइट्स दो। मस्जिद नबवी में आकर बैठेंगी सबके साथ और साथ बैठेंगी और हम साथ तदरीस करेंगे और हर किस्म की गुफ्तगू करेंगे। उनको जो सवाल पूछना है वो मुझसे पूछ सकती है, यहाँ तक कि माहवारी का सवाल करना है मुझसे पूछें, मैं जवाब दूंगा। मॉडर्न थे ये, मॉडर्न हुआ या ये दक्या मुसीबत? मॉडर्न हुआ ना, हाँ मॉडर्न हुआ ना। तो नहीं, वहां उस वक्त ऐसे नहीं था, सब तालीम साथ हासिल करते थे, लेकिन उसमें क्या था, लोगों के एथिक्स ठीक थे। अब जितना ज्यादा हम ये बुरा भला लोगों को कहते हैं, इतना बच्चे रिबेलियस होते हैं। तो आपने उनके साथ साथ कदम ब कदम उनके साथ चलना है, दोस्ताना रवैया रखना है, उनको अंडरस्टैंड करना है। आप उनके साथ दोस्ताना रवैया रख ही नहीं सकते अगर आपको पता ही नहीं है उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। तो सुबह बच्चा गया, रात को वापस आया, चाहे इतना सा भी है, स्कूल गया, मदरसे गया, ट्यूशन गया, आपको तो पता ही नहीं है कि उसकी दुनिया में और कितने लोग हैं जिनको आप जानते ही नहीं। उसकी एक दुनिया है अपनी, उसकी दुनिया में 50 ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते ही नहीं। कॉन्शियस प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, जिन लोगों ने बहुत स्टडी किया ह्यूमन बॉडी को, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, ब्रेन को स्टडी किया, वो हमें बताते हैं कि स्ट्रेस का लेवल लंबी लंबी गहरी सांसें लेने से 1 डिग्री नीचे आता है। क्यों? मतलब हमारे पास साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ जाता है? पहले लंग्स में जाता है, वहाँ से कहाँ जाता है? वहाँ जाता है आपके छोटे छोटे से ना बोरियों जैसे सैक्स होते हैं अंदर, अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है ज़बरदस्त, लंग्स को अंदर से आप देखें छोटे छोटे से जैसे बोरियां होती हैं छोटी छोटी, उसमें भर जाती हैं। वहाँ से कहाँ जाती है? खून में, ठीक है। जब खून में जाता है तो खून जो होता है ना, खून तो एक पानी की तरह एक लिक्विड है ना, मगर वो जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है। अच्छा, खून शरियानों के थ्रू, जो हमारे जो कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनके थ्रू हमारे जिस्म के हर हिस्से में जाता है, हर हिस्से में। यानी कि अगर मैं इधर पिन चुपोती हूँ, कोई भी चीज़ अगर मुझे यहाँ इस कोने पर महसूस हो रही है, तो आगे बंद करो, महसूस हुआ, बोलो, आगे बंद करो, महसूस हुआ, अपने साथ ट्राई कीजिएगा। ये जो कोने किनारे हैं हमारे, हम इनका भी शुक्र नहीं अदा करते हैं कि इसमें जान है। जब ये इतना सा हिस्सा हमारा महसूस नहीं होता ना, हमें तो हमें परेशानी होने लगती है कि मुझे इसमें कुछ महसूस नहीं हो रहा। मेरी हर चीज़ को आँख बंद करके मैं ऐसे टच करूँ, मुझे फील हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ये सेंस है, हमारी फिंगर टिप्स हैं। ये जब फील होता है जब यहाँ पे खून पहुँचता है और ऑक्सीजनेटेड खून पहुँचेगा, इतनी हमारी सेंस तेज होगी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारे दिमाग तक पहुँचता है, दिमाग में वो पहुँच रहा है, तो ऑक्सीजन से भरा हुआ खून हमारे दिमाग को रिएक्टिव होने से बचाता है। रिएक्टिव का मतलब है कि हम सोच के जवाब देंगे, हम कहेंगे यार इसको जवाब देने का फायदा भी है कि नहीं। ये शख्स ही जवाब दे के आर्ग्यूमेंट ही शुरू होगी, माफ कर दो, हिदायत दे रहा है। आप देखते हैं 4 लोग, कोई ऐसी बहस चल रही है जिसका कोई फायदा नहीं, आप कहते हैं आसमान देखो, आप निकल जाते हैं। आपके पास इतना तहम्मुल होता है इसलिए कि आपने डीप ब्रीदिंग की होती है। मजे की बात सुने, ये मैंने पढ़ा कहीं और ये फिटनेस प्रोफेशनल्स वगैरह हमें बताते हैं कि 15 डीप ब्रेथ्स, एक डीप ब्रेथ होती है, ये एक हुई, इनहेल एक्सहेल, 15 दफा अगर एक वक्त में आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो जो आपका रिएक्ट करने की जो स्पीड है ना, किसी भी बात पे जो हम रिएक्ट करते हैं वो 1 डिग्री कम हो जाती है। स्ट्रेस चीज़ों को उठाने का जो आपकी सिलाहियत है, हर बात अल्लाह अल्लाह क्या होगा क्या होगा, तो जो हम उठाते हैं वो 1 डिग्री आपका कम हो जाता है। 15 सांसें एक साथ लेनी। अगर आप अजान शुरू से लेकर अजान खत्म तक डीप ब्रीदिंग करें ना, 15 से 17 ब्रेथ होती है।
पूरी अजान की टाइम अगर आप खामोश हैं, और बच्चों की ज़्यादा आती है 21 के करीब हो जाती है, लेकिन हमारी और आपकी से मेरी 14-15 इस तरह आती है। और अगर वो हम हर अजान के टाइम करें, जब हम सुने कहीं भी हो, बाजार में हैं, हम नानी की करें, हम वहाँ हैं, अजान अलार्म है आपका सेल्फ केयर का। अल्लाह ताला कहते हैं अपना ख्याल रखो, रुक जाओ, स्टॉप, थोड़ी देर के लिए सब रोक दो, रुक जाओ। फिर हमें सिखाया गया कि उसका जवाब दे, वो आप दिल में दे सकते हैं, आप दिल में हर बात का जवाब दे सकते हैं, आप शुक्र अदा कर सकते हैं, आप तस्बीह कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन अपनी दीदी के साथ आप 1 महीना करके रहें, और फिर आप अपने उस शख्स पे जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी उतरती है ना, उससे पूछिएगा मेरे अंदर कोई फर्क आया, ठीक है, मगर उससे उम्मीद नहीं कीजिएगा कि वो सच बताएगा, क्यों जाहिर है इतने सालों आपने उसको तंग किया तो वो ऐसे तो नहीं सही बताएगा, पर आप पूछते रहिएगा, ठीक है। लेकिन आपको खुद अपने अंदर रहेगा, और आप अपना एक ना वो बना लें, कंपस बना लें, एक थर्मोमीटर बना लें घर के अंदर, कोई भी दीवार हो ना उसके ऊपर ऐसे करके ना लाइनें लगा दें, उसको लिखें 1 2 3 4 5 6, किसी को भी नहीं बताओ घर में, लोग बोले मम्मी आपने ये क्या किया है, तो आप उसके ऊपर पेंसिल से रोजाना मार्क लगा दें कि आज मेरा जो रिएक्ट करने का जो होता है ना स्पीड, मैं लोगों को फटाक से जवाब देना, मतलब इधर रुकती नहीं है बात, मतलब इधर अभी इधर है, इधर से इधर कब आया पता ही नहीं चला, थोड़ी देर उसको होल्ड तो करें, उसके साथ एक आशनाई, जैसे किशमिश के साथ आपने आशनाई की, तो उसको देखें, सोचें मेरे दिल में ये बात आ रही है कि मैं उसको गाली दूँ, गाली को जरा सोचें कैसी लग रही है देखने में, उसको बोलूँगी इतनी देर में, बोलूँगी छोड़ो यार तो टाइम खत्म हो गया, बंदा ही चला गया, आप बच जाएंगे, आप बच जाएंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो चला जाएगा, आपकी जुबान से चीज़ नहीं निकलेगी, आप बदनाम नहीं होंगे, आपके बारे में लोग एक अच्छा ख्याल रखेंगे, और क्या लेकर जाना है दुनिया में। और सबर शुरू कहाँ, ये सबर है ना, सबर शुरू कहाँ से होता है, जहाँ से लोग आपके साथ बुरा करें, उससे पहले तो सबर होता ही नहीं है, उससे पहले तो सब अच्छा है। अगर कोई आपको हक करते नहीं ना, मुझे आके प्यार करती है, मैं बोलूँ सबर कर रही हूँ, तुम्हें प्यार कर रही हूँ, वो तो मुझे मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, वो भी करेंगे, हाँ, लेकिन अगर कोई आके मुझे गलत तरीके से मुझसे बात करे, उस वक्त मैं अपने आप को रोक लूँ, ये है। और ये सिर्फ एक कॉन्शियस माइंड कर सकता है, कॉन्शियस माइंड। हमारी सारी जो प्रैक्टिस है ना दीन की, हमारी भी है और दीन में भी है, ये मत समझे कि सिर्फ हमारे दीन में है। बुद्धा जाके बैठ गया था, बुद्धा के बैठने सुना, वो भी ढूंढ रहा था सुकून का है, सुकून का है, सुकून का है, उसने कहा बस मुझे छोड़ दो, पॉज, उसका पॉज बहुत लंबा हो गया, वो जहाँ बैठ गए वहीं ही डाइड, इतना लंबा, वो एक शहजादा था, वो सब अपना महल छोड़ के निकल गया था, उसको हर चीज़ में लगता था नहीं ये नहीं है जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ, ये नहीं है जिसके लिए मैं आया हूँ, तो जाके दरख्त के नीचे बैठ गया, वहीं उसकी सांस निकल गई, तो लोगों ने उसकी मूर्तियाँ बना दी, उसने नहीं कहा था मेरी मूर्तियाँ बनाओ, ठीक है। तो हर दीन के अंदर अगर आप क्रिश्चियनिटी को देख लें सबको, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए मिसाल है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जाते थे कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, रोज जाते थे, हाँ, वहाँ क्या करते थे, इबादत, मतलब किस फॉर्म में इबादत, हमें क्या पता क्या करते थे, मगर एक बात हमें पता है कि तन्हा जाते थे, अब वहाँ बैठे रहते थे, सोचते थे, अपने आप से सवाल पूछते थे, सजदे में होते थे, तस्बीह करते थे, अल्लाह वाला। ये पता है कि वहाँ चले जाते थे थोड़ी देर, अच्छा क्या ऐसा करते थे वहाँ जाके बैठ के अपने सब को भूल जाए, अपने खानदान को पीछे वापस आते थे। ये जरूरी है कि हम जब अपने कॉन्शियसनेस को ढूंढने के लिए कहीं तन्हाई में बैठे तो उधर ही ना बैठ जाएं, वो मेडिटेशन करें और बाहर निकलें और फिर आए अपने रिश्तों के पास वापस। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लंबी लंबी सांसें सुबह उठते ही साथ रात सोते तक लेते रहें तो पेट में दर्द हो जाएगा, लंग्स में दर्द हो जाएगा, है ना। तो बस इतनी, ये अजान का टाइम है, जब सुने अजान अपने घर में सबकी आदत डाले बेटा रुक जाओ। मुझे हमारी एक मदर ने आके बताया 2 ऐसे वाकयात हुए। एक तो मैंने शायद कल परसों के आप लोगों को बताया था कि 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे और एक बच्चा हमारे पास आता था और एक बच्चा उसका छोटा था, तो खिलौने पे लड़ रहे थे। तो बड़ा वाले ने छोटे वाले अजान हुई, एकदम लिखा था एक दूसरे के ऊपर, एक गाड़ी के ऊपर अजान हुई, तो उसने कहा 1 मिनट, वो जाके बैठ गया। छोटा वाला गाड़ी लेकर भाग गया, ठीक है। लेकिन माँ ने क्या बोला मुझे, माँ ने कहा मैंने इससे दोनों बच्चों को देखा, वो छोटा तो भाग गया, ये क्योंकि
बैठ गया सांस लेने तो मैं इसके पीछे जाके बैठ गई, मैंने ऐसे हाथ से उसको पकड़ा और मैं भी सांस लेने लगी। अब उसने क्या किया अपने बच्चे को? प्यार दिया। जब उसकी आंख खुली उसने कहा मम्मा, और उसने मुझे गले लगा दिया, उसको याद ही नहीं था क्या। एक और माँ ने आके बताया कि हम दोनों मियाँ बीवी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे और हमारी आवाज़ें ऊंची हो रही थी और एकदम अजान की आवाज़ आई तो मैंने कहा सबर, अपने मियाँ को कहा कि सबर करो। मैं सांस लेने लगी तो जब मेरी आंख बाद में खुली तो वो भी सांस ले रहा था। तो ये जो होता है डिफ्यूज करता है एक चीज़ को, गुस्से को डिफ्यूज करता है। तो ये एक ऐसा अलार्म है जो ना आपको मेहनत करनी पड़ी, वरना हमें फ़ोन में अलार्म डालने पड़ते हैं, सुनो मुझे दिन में 3 बार 15 दफ़ा ब्रीदिंग करनी है, वो कौन फोन खोल के देखेगा? तेरे को तो कुछ बज रहा है आपके में, ठीक है। तो ये एक तरीका है अपने अंदर कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का कि दिन में कुछ टाइम अकेले रहा करेंगे, अच्छा होता है अकेले रहना, तो कोई अफसोस की बात नहीं है, मैं तो अकेली हूँ नहीं, इसको भी इंजॉय करें अकेलेपन को, ठीक है। अगर थक जाए तो मुझे बताइएगा, मैं तो पता नहीं बहुत कुछ लिख के आई हूँ, मेरे लिए 3 घंटे की काम, ठीक है। अच्छा सभी एक में नमाज का टाइम है तो कहाँ यहीं पर यही मिसाल देना चाहती हूँ, जैसे हम रोड क्रॉस करते हैं और सेफ्टी रखते हैं तो आगे चल के लाइफ के बारे में, बच्चे के बारे में भी मेन चीज़ जैसे आपने उस दिन बताया था सेफ्टी, हर चीज़ के मामले में हमें पहले सेफ रहना है फिर आगे जाके बढ़ना। कितनी अच्छी बात है, वेरी नाइस। गाड़ी कौन कौन चलाता है आप लोगों में से? कोई एनिमल हु ड्राइव द कार? नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, गाड़ी जो चलाता है उसके साथ बैठता कौन कौन? मतलब फर्स्ट सीट पर किसी का कोई गाड़ी चलाता हो, साथ बैठे हो आप कभी? ऐसा हुआ साथ बैठे हैं कभी किसी के साथ गाड़ी चलाते? बस और कोई भी नहीं बैठा साथ किसी को? मैं कुछ नहीं पूछूंगी आगे। तो अगर गाड़ी चलाते हुए आप ड्राइवर को देखें जो गाड़ी चलाता है, वो स्टीयरिंग के आपको पकड़ के गाड़ी की सीट में बैठा हुआ होता है, राइट? तो जब वो सीट में बैठता है, ये मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है, मेरे पाँव कंट्रोल करें नीचे, एक ब्रेक होता है, दूसरा एक्सीलेटर, ये ब्रेक होता है, ये एक्सीलेटर होता है। जब मैं एक्सीलेटर को दबाती हूँ तो गाड़ी भागती है, ब्रेक को दबाती हूँ तो रुकती है। मेरे इस एक्शन से जब मैंने ये एक्शन किया तो गाड़ी दौड़ने लगी, जब मैंने ये एक्शन किया तो रुकी, ठीक है। अब आपने देखा होगा एक शीशा होता है छोटा सा लगा हुआ, उससे हम पीछे की तरफ देखते हैं। तो गाड़ी की हमारे लिए एग्जाम्पल नजर नहीं आ रही आपको, खड़ी हो। गाड़ी भी हमारे लिए इसका एग्जाम्पल हो सकती है कि गाड़ी में भी हमारा साइड मिरर होता है, जो हमारा पास्ट होता है, जो स्टीयरिंग व्हील होती है वो हमारा प्रेजेंट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर कर लें तो शायद एक्सीडेंट हो सकता है। और बाकी जो हमारा सामने वाला मिरर होता है वो हमारा फ्यूचर होता है, वो हम आगे बढ़ रहे होते हैं। तो जिस ज़माने में हमारा बच्चा होता है, आप लोगों के बच्चे होते हैं ऑब्वियसली, तो वो आप लोग का प्रेजेंट होता है और वो ही तो इम्पोर्टेंट है। जो साइड मिरर में आप देख रहे हो वो आपका पास्ट है, वो आपका ज़माना था जो शायद गुजर चुका है, और आगे आने वाला जो आपका मुस्तकबिल है वो आपके प्रेजेंट के बाद आएगा, और आपके प्रेजेंट में आपके बच्चे का ज़माना है और आपके बच्चे हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। इसने अपने ओपिनियन से, अपने नज़रिए से समझाया और बड़ी पैशन से समझाया, लग रहा है कि मतलब फील कर रही है कि कुछ गड़बड़ है। तो अब अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और आप प्रेजेंट सिचुएशन में बैठे हैं, क्योंकि जो गाड़ी में आप बैठे हुए हैं वो आपका प्रेजेंट है, जहाँ आप खुद हैं ये जो अभी हो रहा है ये प्रेजेंट है। अभी जो दिमाग में आपके चल रहा है, घर जाके चपाती बनानी है, खाना बनाना, तो आपका फ्यूचर है। जो पीछे के बारे में सोच रहा है कि ओ ये तो कह रही थी कि 6 बजे खत्म हो जाएगा, और वो पास्ट के बारे में सोच रहा है पहले। लेकिन अगर आप इस प्रेजेंट मोमेंट में सारा टाइम पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे या सारा टाइम चपाती बनाने के बारे में सोचेंगे तो यहाँ की चीज़ मिस कर जाएंगे। तो आप सोचते हैं सामने चपाती बनानी है, फिर आप कहते हैं सुनो अभी ये वाली बात सुनो, वरना मैं मिस करूँगी, राइट? पास्ट के बारे में सोचते हैं, यहाँ रास्ते में मैं जो ना अभी एक टक्कर लगा के आई हूँ, मेरी गाड़ी को टक्कर लगी है, घर भी जाना है, सुननी भी पड़ेगी, फिर आप बोलते हैं अभी नहीं, अभी तो यहाँ बैठी हूँ, मुझे यहाँ से मुझे अगर मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है
तो मुझे अपने आप को बार बार प्रेजेंट में लाना पड़ेगा, वरना मैं मिस कर जाऊंगी। ठीक है, गाड़ी चलाना एक इतना जबरदस्त मेटाफोर है कि सामने जो मिरर लगा होता है जिससे हम पीछे का देख रहे होते हैं, अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ प्रेजेंट में, मैं सारे वक्त उसको देखती रहूँ, क्या होगा? मैं पीछे की तरफ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ बचपन में ये हुआ, पीछे ये हुआ, मेरे शौहर ने ये किया, वो था। तो मेरी जो जिंदगी है, जो मेरी प्रेजेंट की जिंदगी है, वो कहीं ना कहीं टकराएगी। ठीक है, और अगर मैं गाड़ी में प्रेजेंट में बैठी हुई हूँ और हर वक्त फ्यूचर का सोच रही हूँ, यानी मैं यहाँ से निकली, गाड़ी में बैठी, मुझे डिफेंस जाना है, मेरा फ्यूचर क्या है? 15 मिनट के बाद मैं डिफेंस में हूँगी, ये मेरा फ्यूचर है ना, तो 20 मिनट के बाद मैं वहाँ होंगी। आप सोच रहे होंगे 20 मिनट के बाद मैं अभी अपने घर में होंगी, लेकिन अगर मैं गाड़ी चलाते तो हमें सोचती हूँ डिफेंस पहुँचना है, और सामने सिग्नल्स पे रेड लाइट है, मैंने उसको तोड़ दिया क्योंकि मुझे जल्दी है अपने डेस्टिनेशन पहुँचने की, तो मेरा चालान हो जाएगा, मैं फंस जाऊंगी, किसी के साथ टकरा जाऊंगी, या कोई पकड़ लेगा, या कोई किसी आदमी को टकरा दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है डेस्टिनेशन पहुंचने की। हमारी पूरी जो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हमारी अटेंशन, यानी हमारी कॉन्शियसनेस को हमें ब्रेक कैसे करना है? अगर 100% हमारी कॉन्शियसनेस है तो हमें उस कॉन्शियसनेस से 70% प्रेजेंट में रहना है, 20% फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, आगे का सोचना है, हाँ मुझे डिफेंस जाना है। ये नहीं हो सकता कि आप रिक्शे वाले के पास बैठ के बोले भाई जहाँ ले जाना है ले जाओ, मुझे तो नहीं पता कहाँ जाना है। कुछ तो फ्यूचर, कुछ तो मैप होगा ना कहाँ जाना है, राइट? या ये भी नहीं हो सकता कि आप रिक्शे वाले के पास बैठ कर अंदर और आप पीछे की दुनिया में टैली पुलाव बना रही हैं और आपका रात जहाँ जाना था वो पीछे रह गया, आप अपने काम पहुँच गए, बोले भाई हम कहाँ गए, बोला आपने तो बताया नहीं था जाना कहाँ है, मैं भी चले जा रहा हूँ, तो क्या होगा उसका? तो रिक्शा वाला ले जाएगा। तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस में 70% रहना है, फ्यूचर के बारे में 20% सोचना है, और अपने पास से हमें ऊपर देखना है, फिर आगे देखना है। ऊपर हम कितना देखते हैं गाड़ी चलाते हुए, बस ऊपर देखते हैं पीछे कौन आ रहा है, पीछे कोई मुझे ओवरटेक करने वाला तो नहीं है। कभी कभी हम पीछे उसमें भी देखते हैं कौन गुजर गया, बस इतना सा देखते हैं, फिर आगे इतना सा देखते हैं। लेकिन सबसे जरूरी क्या है? मेरे वो पाँव के कंट्रोल और वो स्टेयरिंग का कंट्रोल, जो मेरा प्रेजेंट है। माइंडफुलनेस कहते हैं प्रेजेंट में रहने को, और माइंडफुलनेस कॉन्शियसनेस के लिए बेइंतहा जरूरी है। कॉन्शियस होने के लिए ये प्रैक्टिस करनी है आपको कि मैं जहां जिस वक्त अभी मौजूद हूँ, ये लम्हा सबसे जरूरी है। इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हैं, इस वक्त आप मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। मुझसे मेरा दुश्मन भी मिलने आया है ना, अकेले में अपॉइंटमेंट लेकर आया है, लेट्स इमेजिन मुझे तंग करने आया है, मुझसे कुछ भी मुझे कोई इल्ज़ाम देने आया है, उस वक्त वो मेरे लिए VIP है, उसको मुझे फुल अटेंशन देनी है, फ़ोन नहीं उठाऊंगी, कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि वो लम्हा, प्रेजेंट का लम्हा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने उसको खोया तो मैं आगे फ्यूचर में भी गड़बड़ करूँगी और मेरा सारा मुस्तकबिल खराब होगा। ठीक है, तो ये तो माइंडफुलनेस बहुत लंबी, इसकी भी एक एक्सप्लेनेशन है, मैं और मजीद इसमें नहीं जाऊँगी। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, यहाँ इसके आगे बहुत कुछ है कॉन्शियसनेस में, हम इसका दूसरी सीरीज भी कर सकते हैं, ये 3 घंटे में ये चीज़ हो नहीं सकती। सिर्फ आपने जो आज से टेक अवे लिया वो मैं सुनना चाहती हूँ कि आज की क्लास से आपने कॉन्शियसनेस को क्या समझा? कॉन्शियस पेरेंटिंग, सिर्फ पेरेंटिंग का फर्क समझा है? कोई लेवल इस वक्त 3 घंटे के अंदर आपका कोई कॉन्शियसनेस का एक सीढ़ी ऊपर गए या नहीं गए? ये बताएं। अपने बच्चों के साथ बैठ कर तो वो हर चीज़ शेयर करनी है। जैसे अभी हमारी जैसे IELTS चल रही है, कुछ बच्चे नशे में लगे हुए, कुछ बुरी चीज़ों में लगे हुए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे तैयारी में तो बहुत ज़्यादा है, बाहर भी हो रही है सब कुछ चीज़ें, लेकिन हमें उन सब के बारे में बैठकर अपने बच्चों से ये बात करनी चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। और मैंने खुद ये किया अपने बेटे के साथ मिलकर, मैं अपने बेटे को 9th-10th के उसके एग्जाम हो रहे थे तो मैं खुद लेकर जाती, उस पर लोग हंसते भी थे, यहाँ तक कि इंटरव्यू मैंने उसको खुद ले जाकर करवाई है। तो मुझसे पूछा था आपकी बेटी के एग्जाम हो रहे हैं, जॉब करती नहीं, मेरे बेटे का हो रहा है, तो बेटे को खुद भेजे, आप क्यों आ गए? वो खुद आएगा, जवान है। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद, मतलब उसको वो खुद भी चाहता कि मेरी माँ मेरे साथ जाए। तो जैसे रास्ते में मैं जो कुछ भी देखती थी, लड़कों को निकलते देखती थी स्कूल से, कॉलेज से, वो सिगरेट पी रहे हैं, कोई पान खा रहा है, कोई चालियाँ खा रहा है, तो मैं खुद अपने बेटे को कहती थी
कि देखो ये सब कुछ हो रहा है, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी नहीं है, इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो ज़ाहिर बुरी चीज़ों में पढ़ेंगे, ये सब कुछ आपको नहीं करना है। तो मैंने खुद ये सब कुछ अपने बेटे के साथ करके किया है। मैं हर वो लेवल पर बात करती थी अपने बेटे से, अगर वो कंप्यूटर पर बैठा हुआ होता था ना, मैं उसको चेक करती थी कि ये क्या कर रहा है। और मतलब आप सुपरवाइज करती हैं अपने बच्चों को हर चीज़ में, और सुपरवाइज करना वो अच्छे पोस्ट पर भी है। और पता है इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छा है, 2 स्टेप्स आप ऊपर ही हैं, माशाल्लाह सुपरवाइज करती हैं, लेकिन बच्चों के ना जहन में सवाल हर चीज़ का आता है कि क्यों मम्मा, अगर ये चीज़ गलत है तो क्यों गलत है, उस क्यों का आपके पास जवाब देना चाहिए कि अगर ये लोगे तो इससे कैंसर हो जाएगा, अगर ये लोगे तो फिर ये हालत होगी। उनके क्यों का जब जवाब देते हैं तो उनको सेटिस्फैक्शन होती है। लेकिन जब हम बच्चों को कहते हैं ना हमारे ज़माने में तो हम ऐसे नहीं करते थे, तो लेट्स इमेजिन आप उम्रे में जा रहे हैं, आपका बच्चा आके बोलता है मम्मा आप हवाई जहाज में क्यों जा रही हैं, ऊँट पे जाए ना, आपके ज़माने में तो ऊँट पे जाते आप जाएंगे क्यों? अब आप उसके ज़माने में आ गए, अब आप कह रही हैं आपके ज़माने की सारी चीज़ मैं यूज़ करूँगी, मैं तो हवाई जहाज में जाऊँगी, क्यों? वो कहेगा ये तो मेरे ज़माने की है, छोड़े ना, आप तो और अपने ज़माने की बात करती है। तो हमें अपने फ़ायदे के लिए हम इस ज़माने में आ जाते हैं जहाँ हमें तनकीद करनी है, हम अपने ज़माने में चले जाते हैं। ज़माना ये वाला आपका भी है, जितने जिंदा है ना सबका ज़माना है, हमें सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी। हाँ, अपने बच्चों से ज़रूर ये कहें कि आप हमें बताएं, हमसे ये चल नहीं रहा, सिखाएं बेटा हम अपने ज़माने में ये करते थे, आपके ज़माने में यही चीज़ कैसे होती है। वो अगर उसको कोई बात भी करना होता है उसका ना, तो पहले वो मुझे मैसेज करता है कि मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं तो एक दूसरे जवाब देते करो जो भी कहना है आपको बोलो, तो कहते नहीं घर आके करूँगा। तो घर आता है, जैसे मैं उसको खाना देती थी बिठाती थी सामने, तो वो तो आपने कहा था मुझे बात करनी है, तो कहा नहीं बात में करूँगा, नहीं अभी कहा अभी क्या हुआ, तो मैं उसको फिर जवाब देती कि आप मुझे लग रहा है कि आपको ये बात मुझसे करनी है, तो वो हंसने लगता था कि आपको कैसे पता है कि मुझे ये बात करनी है, मैं आपकी माँ हूँ, मैं समझती हूँ आपको। देखिए जो भी आपने गुफ्तगू की ना, मैं इस वक्त ना आपको अपने जहन में ना आपकी पिक्चर आ रही है मुझे कि आप जब अपने बच्चे से बात करती होंगी तो उसको तवज्जो देती होंगी, एक गुफ्तगू। तो मेरे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ाते थे ना सबको, तो सहाबी कहते थे कि ऐसे लगता है कि वो सिर्फ मुझे ही पढ़ा रहे हैं, मतलब हर शख्स को ऐसा लगता था कि वो मुझे ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका आई कॉन्टैक्ट हर एक के साथ इतना अच्छा होता था। फिर उनकी एक हदीस है कि जब किसी से बात करो तो अपना पूरा जिस्म उसकी तरफ फेर दो। तो तवज्जो की लेवल तो देखें ना, कॉन्शियसनेस की और तवज्जो की। किसी को तवज्जो दो तो ऐसे नहीं चलते फिरते खाना वगैरह, हाँ क्या है, ये बुरा लगता है। तो कोई शख्स अगर किसी से बात करे और उसको बिल्कुल रुक जाए और रुक कर उसकी बात को सुने, भले भी भले 1 मिनट के लिए हो, वो सेटिस्फाई हो जाता है बच्चा कि मेरी बात को सुना। और लेकिन माओ को मैंने देखा है वो सरमाई भी नहीं करती, फादर भी कॉन्शियस पेरेंटिंग नहीं करते हम, ठीक है। रोल मॉडलिंग की बात हो रही थी, रोल मॉडल करना, आपको देख देख के बच्चे सीखते हैं, जो आप करेंगी आपको देख देख के बच्चे करेंगे। आपने देखा है नमाज आप पढ़ती हैं, छोटी सी जानवर बिछाएंगे, दुपट्टा बांधेंगे, हील वाली चप्पल पहनेंगे, मम्मा की तरह लिपस्टिक लगानी है, अब्बू को कोई चीज़ करते हुए देखेंगे तो अब्बू को इसी तरह से उसको रिपीट करते हैं बच्चे। जिस अंदाज में बाप करता है उसी अंदाज में बच्चे बात करते हैं। अब चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू लगाना, ये बड़ी छोटी सी वीडियो है, लेकिन इसको याद कर लें आप। आपने बोले चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू, बोले हाँ, ये बात आप बोला करें आपस में हर वक्त, चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू, यानी का मतलब है कि जो देखते हैं वो करते हैं, ठीक है। And reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30-40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. And the still face experiment that the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this
And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. क्या हुआ है? देख कर क्या समझ आया? क्या हुआ था? खामोश हो गई तो बच्चे को जो पता नहीं क्या हो रहा है, तो वो भी उसके साथ शेयर हो गई, वो बच्चा भी उसका। किस चीज़ से? मामा मेरी रिएक्शन नहीं करी, वो स्टॉप हो गई, क्या हो गया? उससे पहले वो अपनी माँ से बातें कर रहा था और थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि मामा बिल्कुल स्टॉप हो गई है, क्या हुआ है? समझ नहीं आ रहा, जो मामा कर रही थी फिर बच्चा वो रिपीट कर रहा था मामा के साथ, वो हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था, वो आवाज़ें निकालने की कोशिश कर रहा था, फिर बच्चा लोग से चीखने लगा, मामा ने रिस्पॉन्स नहीं किया। जब मामा ने रिस्पॉन्स किया, बच्चे को शुरू हुआ तो फिर बच्चे को तो पहली वाली माँ जो कि उसके साथ खेल रही थी वो कॉन्शियस थी या अनकॉन्शियस थी? और दूसरी वाली माँ बुद्ध की तरह थी, जैसे बुद्ध होता है, और वो छोटा सा बच्चा जो है उसके सामने माँ तो है, वो तस्वीर बन गई थी जैसे, तो उसका स्ट्रेस का लेवल बच्चे का आपने देखा कैसे कैसे बढ़ रहा था? और हम कहते हैं इतने छोटे बच्चे कुछ नहीं समझते। तो ये तो इतना सा है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, सामने 18 साल का बच्चा बैठा है, वो कैसे, ये तो इस बच्चे ने तो आ करके रिएक्ट किया, 18 साल वाला क्या करेगा? ऐसे ही करेगा, वो क्या करेगा? सेल्फ हार्म, उसने कहा अपने आप को तकलीफ देगा, क्योंकि वो देख रहा है कि मेरी किसी बात से ना इनके चेहरे पे सिलवट आती है, ना ही इनको कोई असर हो रहा है। तो बिल्कुल जैसे बोलते हैं पेरेंट्स मेरे, घर जाओ तो अम्मी ऐसे, अबू ऐसे, जाने नहीं जैसे, हंसा बोला करें, खुश रहा करें ना, समिया से सीखें। हर वो खुश रहती हैं। कल मुझे कह रही थी और क्या है जिंदगी, खुश रहें। बच्चे बहुत फील करते हैं, माँ बाप का गम बच्चे अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, और फिर वो गम जैसे जनरेशन टू जनरेशन चलता है, एक बच्चे से फिर उसके बच्चे होंगे उसका भी जाएगा, तो जनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं, मतलब माँ से बच्चे में फिर उसके बच्चे में, इस साइकिल को बिल्कुल रिवर्स करते हैं आप। ये साइकिल चल रहा है ना ऐसे, यूँ यूँ गोल 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 घूमने जा रहे हैं, यानी कि मैंने यहाँ पे, मैं कंडीशन थी बच्चे को मारने के लिए, मैंने बच्चे को थप्पड़ मार के मैं काम कराती हूँ, मारा मारा, अब यहाँ से मेरा बच्चा बड़ा होना शुरू हुआ, उसकी शादी हुई, उसका बच्चा हुआ, उसने मारना शुरू किया, वो बड़ा हुआ, वो बड़ा हुआ, उसके यहाँ बच्चा हुआ, उसने मारना शुरू किया। इस साइकिल को रिवर्स करते हैं, रिवर्स। लेट्स डू इट, यू एंड मी करेंगे रिवर्स। यहाँ से पलट जाना है आपने, बस आप है वो जो ये घूम रही है ना, आपने यहाँ रुक जाना है, बस खत्म। यहाँ से मैं घूम रही हूँ और मैं इस साइकिल को पलटूंगी। जब हम पलटेंगे तो जो आपके पीछे आ रहे थे उन सबसे टकराएंगे आप, क्योंकि वो तो यूँ चल रहे हैं, उन सबसे आपको टकराना पड़ेगा। और जब हम जुड़ जाएंगे ना, जब हम 1 से 2, पहले 1 थी, फिर 1 से हम 20 हुए, फिर 20 से 40 हुए, आज माशाल्लाह हम 2000 लोग हैं, हम क्यों नहीं बदल सकते? कर सकते हैं ना, ठीक है। सो दिस इज इट, आज के लिए बहुत है आई थिंक। कितना टाइम है? 5 मिनट है आपके पास। मैं एक बहुत प्यारी सी चीज़ आपको आखिर में जाने से पहले ना, मैं उसको एंड इस तरह करना चाह रही थी, तो मैं आपको एक है तो अंग्रेजी, लेकिन अगर आप कोशिश करें ना तो आप उसके लफ्ज़ों को समझेंगे, लेकिन हम इसको 3 बार सुनेंगे, 3 दफ़ा, ठीक है? पहली बात, sun stops shining
what would happen if the sun stopped shining? You'd be so surprised. You'd stare at this wide open eyes. The wind would carry you right to the skies, and the sun would start shining again. Down the wind would start blowing again. But then, what if the grass falls brown? What would happen then? Well, if the grass stopped growing, then the land would be dry, and the ground would be watered by the tears from the eyes. Like your love for me, the grass would grow so high, the grass would start growing again. Well, I'll tell you what, if you stopped loving me, the grass would stop growing, the sun would stop shining, the wind would stop blowing. So you see something? If you want to keep this old world going, you better start loving me again. You better start loving me again. You love me, Bob. You better start loving me again. Again. You better start loving me again. Okay, now थोड़ा सा कुछ समझा? अच्छा, अब हम इसकी कैरियोकी देखेंगे. अब कैरियोकी लगाएंगे ताकि इनको वर्ड समझ आए. जस्ट ये 1.5 मिनट की 3 सेशंस. कोई गा रहा था आप लोगों से, ड्रीम कर रहे हैं अभी नहीं. हाँ, वो बात होल्ड ऑन, दैट्स द सरप्राइज इन द एंड. अभी कैरियोकी लगाइएगा, इसकी लिरिक्स जो है सिर्फ. अब आप अल्फाज इसके देखिएगा, ये वाले, ठीक है, कि ये लफ्ज क्या है, और हम इसको रोकेंगे बेटा. एवरी टाइम थोड़ा सा रोक के मैं समझाना चाहती हूँ. ये बाप बेटा है, सिंगर है, और इसका बेटा है ये. इसके लफ्ज देखिएगा कितने प्यारे हैं. किस तरह बाप और बच्चे की आपस में जो गुफ्तगू है इतनी प्यारी है. ठीक है. डैडी व्हाट इफ द सन स्टॉप्स शाइनिंग. कि अबू अगर सूरज चमकना बंद हो जाए तो आगे स्टॉप. फिर क्या होगा? पूछता है कि अगर सूरज चमकना बंद हो जाए तो अबू फिर क्या होगा? ठीक है, अबू जवाब दे. अगर सूरज चमकना बंद हो गया तो तुम इतने हैरान हो जाओगे कि खुली खुली आंखों से तुम आसमान की तरफ देखने लगोगे. और जो हवा है वो तुम्हारी आंखों की रोशनी को आसमान तक लेकर जाएगी, और उस रोशनी से सूरज दोबारा चमकने लगेगा, तुम्हारी आंखों की रोशनी से. और अगर हवा चलनी बंद हो जाए जो मेरी आंखों की रोशनी में ले जाएगी, अगर वो बंद हो जाए तो फिर क्या होगा डैडी? If the wind stopped blowing, that the land would be dry. Your boat couldn't sail, son, your kite couldn't fly.
और अगर हवा बंद हो गई तो क्या होगा कि पूरी ज़मीन सूख जाएगी और उसके बाद तुम्हारी जो कश्ती है ना वो भी नहीं चल पाएगी जो तुम पानी में बना के चलाते हो, हवा नहीं होगी तो, और तुम्हारी पतंग भी नहीं उड़ पाएगी। And the glass would see a truckle. She'd tell the wind and the wind would start blowing again. और फिर घास जो है वो तुम्हारी इस मुश्किल को देखेगा कि अरे इस बच्चे की तो कश्ती भी नहीं चल रही और काइट भी नहीं उड़ रही, तो वो जाके जो है ना वो बताएगा हवा को कि भाई हवा चलो जल्दी से, इसकी कश्ती नहीं चल रही। ठीक है? ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है सीक्वेंस। अब कह रहा है अगर घास ना होगे तो फिर विंड को कौन बताएगा? If the grass stopped growing, you'd probably cry, and the ground would be watered by the tears from you. और अगर घास नहीं होगी तो तुम्हें रोना आएगा, तो तुम्हारे जो आंसू गिरेंगे वो जब जमीन पे गिरेंगे तो जमीन नरम हो जाएगी, तुम्हारे आंसुओं से घास फिर से उठ जाएगी। आंसू की पुरानी बोल जाती है। और ये घास मेरी, जितनी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना इतनी ऊंची घास उठ जाएगी जितना तुमको मुझसे प्यार है। So glad we start growing again. But Daddy, what if I stop loving you? What would happen to me? लेकिन डैडी, अबू, अगर मैं आपसे मोहब्बत करना ही छोड़ दूं तो फिर क्या होगा? If you stop loving me, then the grass will stop growing, the sun will stop shining, and the wind will stop blowing. So you see. ये समझ आया? हाँ, अगर तुमने मुझे मोहब्बत करनी छोड़ दी तो फिर तो सूरज भी नहीं चमकेगा, घास भी नहीं उगेगा, हवा भी नहीं चलेगी। और आगे वो कह रहे हैं so if you want to keep this whole world going, यानी इस पूरी दुनिया को अगर तुम चाहते हो कि वो चलती रहे, तो आगे सुने। If you want to keep this whole world going, you better start loving me again. तो तुम जल्दी जल्दी से मुझसे प्यार करना दोबारा शुरू कर दो वरना ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये अल्फाज हैं, कुछ गाने हैं जो बजाय हम इंडियन गाने उठा के बच्चों के साथ, अंग्रेजी भी आएगी बच्चों को, आपने सिंगर को सुना, फिर आपने कैरियोकी देखी, इसको कैरियोकी कहते हैं जब अल्फाज चल रहे, तो तकरीबन सब मशहूर गानों की आपको कैरियोकी मिल जाएगी। साथ बैठे 3 मिनट दें बच्चे को तो हम मिलके गाना गाते हैं। अब आप ये देखें, आप कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, जिसको नहीं आती अंग्रेजी वो भी कर सकता है। बचपन से लेके जब से वो पैदा हुआ है उसके साथ आपने अपना कनेक्शन बनाना है, एटलीस्ट ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और फिर आप कंप्लेन ना करें जब बच्चा बड़ा हो जाए कि ये मुझे देखता नहीं है, मुझसे बात नहीं करता है, मुझे टाइम नहीं देते हैं। सो इट शुड स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये थैंक यू, थैंक। चलें जी, ये हो गया। हाँ जी, ये देखें जी, Stop shining, if the sun does die, you say if the heavens divide of night, and the wind would carry you alive to the sky, and the sun would start shining again. If the wind stops blowing, the sunland would be dry, and your ghost will say from the times inside. When the glass would see your trouble, she'd tell the wind, and the wind would start blowing again. What if the glass stopped growing? You'd probably die, and the town would be watered by the
from your eyes. Like you love for me, the grass will grow so high. Yes, it's the grass will start growing again. But Daddy, what if I stop loving you? What would happen then? If you stop loving me, then the grass will stop growing. The sun will stop shining and the wind will stop blowing. So you see, if you want to keep this whole world going, you'd better start loving me again. Again, you better start loving me again. You hear me, Daddy? Yes, I better start loving you again. You love me, Daddy? Yes, I better start loving you again. You better start loving me again. Yes, I better start loving you again. You better start loving me again. तो ये हमारे ही पेरेंट हैं, ये आगे जनाब। तो इनका ये जो सफ़र था, जब ये गाना इन्होंने अपनी छोटी के साथ गाया था, उस सिर्फ गाने की प्रैक्टिस के दौरान जो इनका बॉन्ड बना था ना, सिर्फ गाते गाते प्रैक्टिस कि वो बच्ची आज भी एक ही बात कहती है कि मुझे मेरे अब्बू जो है ना, वो मुझे बस उनसे बात करनी है, हर बात मुझे बस उनसे करनी है, और अगर ये अटेंशन ना देना तो वो इतनी हर्ट होती है। तो शायद किसी और के अटेंशन नहीं देने से वो इतनी हर्ट नहीं होती जितनी अगर ये तवज्जो ना दे, यानी सुने नहीं बात को, तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका बॉन्ड है, जिसका बॉन्ड जिसके साथ बॉन्ड ज़्यादा होता है उसी की बात अब चुपती भी है ना, लगती भी है ज़्यादा। कुछ कहोगे? कुछ याद नहीं है? अस्सलामुअलैकुम। तहरीम मेरी सबसे पहली बेटी है और आज ये छोटी सी नज़र आ रही है आपको। आज माशाल्लाह से 15 साल की है और क्लास 9 में पढ़ रही है। 2.5 साल की थी जब ये किरण स्कूल में मैंने से यहाँ पर एडमिशन करवाया और तकरीबन 1 साल के बाद ही फिर मैंने स्ट्रीम में चली गई और सेंट माइकल में इसने तालीम हासिल की। जब छोटी सी थी और हमारी किरण फाउंडेशन का तकरीबन 5 साल हुए थे और ये उसका फंक्शन था और उसकी तैयारी करनी थी, तैयारी हो रही थी, तो एक दिन मुझे मॉम ने कहा कि आपको अपनी बेटी के साथ एक गाना करना होगा, डैडी सॉन्ग। तो मैंने कहा शायद वो मजाक कर रही है ना, तो मैंने कहा कि मैं कर लूँगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो कोई इंडियन सॉन्ग होगा, डैडी मैं कर लूँगा, ईजी है। तो जब उन्होंने बताया कि इंग्लिश सॉन्ग है तो फिर मेरी जो है ना हवाएं उड़ गई। इंग्लिश सॉन्ग और मैं, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश आती नहीं थी, तो उन्होंने मुझे जो है ना पीछे से पुश किया कि नहीं तुम कर सकती हो। और जब मैंने बेटी को देखा कि यार ये अच्छा मौका मिल रहा है, हम दोनों का मतलब करीब आने का मौका है, तो फिर मैंने इनसे हाँ की और इनके घर पे ही जा के हमने रोज़ाना वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे। मैं घर पर आके फिर उसके लिरिक्स या सुनता था अपने कंप्यूटर पर, तो उस तरीके से करते करते जो है ना फिर हम दोनों ने याद किया इस सॉन्ग को और जो कुछ भी है वो आप लोगों ने देखा, अच्छी तरीके से प्ले किया। ये सब इनकी हो जाता है। हम कुछ भी नहीं हैं, हमें जीने का तरीका इन्होंने सिखाया है। जिंदगी क्या है, जिंदगी को किस तरीके से आप जो है ना वो इसकी मजे लेते हैं। मैं जिस जगह पर काम करता था यहाँ से पहले रेमबो सेंटर में, मेरी सुबह 10 बजे होती थी, 10 बजे उठता था, 11 बजे मैं जॉब पर जाता था। तो जब उन्होंने मुझसे इंटरव्यू दिया कि आप मतलब सुबह कितने बजे जाते हैं, तो मैंने कहा कि मैं सुबह 11 बजे जाता हूँ। तो कहने लगी ये तो सुबह नहीं हुई, ये तो सुबह 11 बजे हुए। तो फिर जब मैं किरण स्कूल आया, किरण स्कूल में आने के बाद मेरी सुबह 7 बजे स्टार्ट हुई। और उसके बाद से जब मैं किरण स्कूल में सुबह 7 बजे अपनी बेटी को छोड़ता था, मैं वहाँ पर जॉब एज अ लाइब्रेरियन जॉब करता था और सुबह 7 बजे के बाद जब अपना काम स्टार्ट करता था 10-11 बजे तक अपने काफ़ी काम निपट जाते थे। तो मैं बोलता इतनी सुबह इतने सारे काम हो भी जाते हैं और लोगों की 11-12 बजे सुबह होती है।
तो सुबह का असल मजा जो है ना वो जल्दी उठने का, नमाज पढ़ने के लिए और उसके बाद अपने काम का आगाज करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। बताना मैं सिर्फ ये चाहती थी इस पूरे शो के आप जब यहाँ से उठें तो आपसे इंतज़ार ना हो रहा हो कि मैं ज़रा जाऊँ अपने बच्चे को प्यार करूँ और उसके साथ कोई गाना गाऊँ, तो जल्दी जल्दी जाएंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे घर। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।